Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to discuss all about cyber security. What is cyber security? What is cyber attack? What are the different types of attacks and different examples of cyber attacks? And what are the different prevention technique? All the things I'm going to discuss in detail. Every important topic related to cyber security, I'm going to discuss in this video. So let's start. Student, we are here to know about cyber security, the importance of cyber security in our daily life. I must say in our daily life, why we should know about cyber security and why there is an introduction of such webinar and such courses at university level and college level. Okay, so let's start. Ma'am has already given my brief introduction. So these are my profile. You can join me on my social media handler. I'm there on YouTube. I have 2 channels on YouTube. I'm having my website. Also I'm having my blog. I'm having my Telegram channel. There I'm sharing lots of notes and PDF freely. You can join all that. Also I'm there on Instagram and LinkedIn. So these are my social media handler. You can join me there. Okay, through the name CS Corner. Okay, so now first of all I would like to know like whether you know about the cyber attack which happened last year in India or not. So do you know guys, the 2022 was the worst year for India. In 2022 the most of the cyber attack happened with India. राइट बहुत ज़्यादा साइबर अटैक इंडिया के साथ हुए थे. तो यू माइट बी थिंकिंग मैम actually what is cyber attack. So first of all we will be understanding the term cyber and then we will be moving to the further topics and we will be seeing so many topics. And guys, believe me, this is going to be very fruitful session. Do join this session till end. Okay, so cyber term, being a student or people from computer science IT, we know what is cyber. This is nothing but which is connection of your computers or your networks or your internet. Okay, so whenever you are using technology by connecting computer, network and internet, they form a cyber. And without computer, without network, without internet, nothing is possible. Can you tell me, can you live a day without your mobile or without your internet? Is it possible to live without internet or without a mobile? Yes, or without connecting to people? I don't think so. For me, it's impossible. I would like to know from you all. It is possible to live without a mobile, without a internet or without a people, without connecting to people? No, it is impossible. Okay, so cyber will be always there, technology will always be there, network will always be there, computer will always be there. So we are going to use them, we are not going to stop them, but we have to somehow protect ourselves. Okay, from what we have to protect? We have to protect ourselves from attacks. Okay, like if I go somewhere, suppose I am planning for some trip, I am going outside and I am giving my house key to my neighbor. Okay, I am giving my house key to my neighbor, just believing that my neighbor is trustworthy person, he or she will not do anything with my house. Okay, but accidentally the person is not trustworthy and he or she tried to take my important asset from my house. So that is an attack. But that was not cyber attack, that was a physical attack. But guys, here we are going to talk about what? Cyber attack. हम जो भी बातें करेंगे, everything we are going to talk related to digital. Okay, digital devices, computer हो गया, laptop हो गया, internet हो गया, we are going to talk about all that thing. So I hope you understood cyber. Cyber मतलब कुछ भी नहीं है, आपका कंप्यूटर है जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है and it is using some of the tools and technology. राइट. ओके, तो अब टॉपिक आता है कि वाई टू अंडरस्टैंड साइबर सिक्योरिटी एंड वाई टू लर्न साइबर अटैक. क्यों हमको पढ़ना है? सी हाउ यू प्रोटेक्ट योर होम. आप मुझे बताइए, आप अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? कैन यू ऑल प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स हाउ यू प्रोटेक्ट योर होम. लेट मी नो हाउ यू प्रोटेक्ट योर होम. सी आई प्रोटेक्ट माई होम बाय पुटिंग अ बड़ा सा गोदरेज का लॉकर. राइट, लॉक लगा देते हैं, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं. दीज आर द डिफरेंट वेज वी प्रोटेक्ट आवर होम. आप मुझे बताइए हाउ यू प्रोटेक्ट. येस, लॉक,
सबसे फर्स्ट पॉइंट लॉक ही आता है. So the point of protecting our home, like we have the important assets in our home. हमारे पास बहुत सारी चीज़ें घर में हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पेपर्स हैं, कुछ गोल्ड्स हैं, कैश फ्लो है, बहुत कुछ है. आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट. आई डोंट वॉन्ट कि कोई बाहर का जो मेरे घर का नहीं है कैन कम एंड टेक माई थिंग्स अवे, है ना. हमको नहीं चाहिए ना. सेम थिंग वी आर गोइंग टू डील विद टुडे. हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एसेट्स. विच एसेट? डिजिटल एसेट. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट. सो दैट्स व्हाट व्हाई साइबर अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज साइबर क्राइम इज ग्रोइंग. ओके, इट इज ग्रोइंग रैपिडली. आप काउंट नहीं कर पाओगे. आई विल शो यू वन वेबसाइट जहाँ पे आप ऐसे काउंट नहीं कर पाओगे कि हाउ मेनी अटैक्स आर हैपनिंग इन अ सेकेंड. So attack, since the technology is growing, the tools are coming day by day, hence crime is also growing. Okay, so we have to raise awareness about all this type of crimes, all the types of threats which are there, which can harm us. Okay, yes, pin, pattern, screen lock, that all we can apply to mobile phone, not to our house. Okay. So most of the police can't tackle all this problem alone. आपके साथ कुछ छोटा सा क्राइम हो गया, जब तक आप पुलिस के पास जाओगे उसके पहले आप खुद के पास, आपके पास कुछ प्रिवेंशन टेक्निक होनी चाहिए, so that you can solve that problem, right? So hence we have to aware about different attacks which are happening in cyber. And then if you learn where to report, how to report, if anything happens with anybody, they can go and report. Okay, and that's what the funda or point which we are going to learn, and hence cyber awareness is very important. So hence the university decided to keep this syllabus at the graduation level. Even we are having this kind of syllabus in post graduation level. Nowadays in India, many of the institute, many of the university and colleges are offering full degree or this post graduation in cyber security. Okay, so now guys we will be understanding what cyber attack. So what is cyber attack? We have understood cyber is nothing but which is related to computer network के साथ जो related है. Now using that cyber, if any attack is done, that is called as cyber. मतलब अगर कंप्यूटर को यूज़ करके, मोबाइल को यूज़ करके, सेलफोन या कोई भी डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करके, नेटवर्क को यूज़ करके, वाईफाई को यूज़ करके, कुछ भी डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करके, इफ़ एनी अटैक इज डन, दैट इज कॉल्ड एज साइबर अटैक. ओके, सो अ साइबर अटैक इज नथिंग बट अ डेलिबरेट एंड अनऑथोराइज्ड अटैम्प्ट. डेलिबरेट एंड अनऑथोराइज मतलब पर्पसफुली कोई कर रहा है, and that person is not having authority to access a particular asset, but still that person is doing what? Accessing or doing attack. So deliberate and unauthorized attempt to access, manipulation or disrupt computer system, network, electronic devices फॉर मैलिशियस पर्पस. जानबूझ के क्या करना है? आपके कंप्यूटर को बंद करवा देना है. सपोज इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन and network is down now, so you can imagine the productivity of that company will stop for a day or for hours. So how much loss that company is going to incur. So that's the purpose of attack. Okay, so deliberately what do? Malicious attack, so that the company will not work properly, or a individual may face problem. So either a computer will be attacked, or entire network will be attacked, or a single devices may be attacked. Okay, cyber attack can be carried out for various reasons. There could be so many reasons for doing cyber attack. Okay, it could be possibility like data theft. For example, there are two company X and company Y. They both are competitor. Okay, they both are competitor of each other. So company X is going to launch some product in market, and now company Y wants to know about that product, so that that company Y can also launch the same kind of product by doing some changes. So what the company Y will do, from company X there might be some employee, for money purpose they will give the information to company Y. So that's what they are saying, that the various reason could be anything reason.
there could be so many reasons for cyber attack. I want to take your data. Suppose I'm a university professor, I'm sharing some question paper to university, and you are a student and you want to know what question paper is going to come in exam. So if you are a kind of attacker, you may steal that question paper, you may attack that question paper, you may hack that question paper. Okay, so there could be any reason. So including theft of sensitive information or disruption of normal operation. I don't want the company should grow. I will do some attack to that company so that their productivity will stop. Okay, spreading malware, some kind of malicious software like Trojan horses, worm, I will spread to your computer so that it will damage your computer system. Okay, so I would like to tell you that in India, like last year 2022, 450 million data was exposed. 450 million data. Can you just imagine? 450 million data was exposed in 2022. Another example I would like to give you, this happens in 2023, recently this year. Anonymous Sudan. I don't know whether you have heard this or not. Anybody who have heard Anonymous Sudan? Okay, so Anonymous, yes, Anonymous Sudan. So that was what they did attack, DDoS attack, denial of service, which we will be learning further on airports, different airport on India, मुंबई, अलग अलग ऐसे एयरपोर्ट्स में उन्होंने क्या किया था, अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारे कस्टमर्स के डेटा लीक हो गए. स्टूडेंट जस्ट इमेजिन लीक ऑफ योर सेंसिटिव डेटा. सी एयरपोर्ट हैव योर लॉट्स ऑफ डेटा, योर फोन नंबर, your mobile number, your email ID, so many data they have. So they just do what, they attack all your data and they try to use that data for what, malicious purpose, right? तो इंडिया में बहुत सारे लाइक HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, इनके ऊपर लास्ट ईयर बहुत बड़ा अटैक हुआ था, उनके सारे कस्टमर का डेटा स्टील हो गया था, राइट? आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट दिस और नॉट. NPCI, डज एनीबडी नो अबाउट NPCI? NPCI, ओके, NPCI, एनीबडी नो? NPCI इज व्हाट, जो इंडिया में हमारा पेमेंट होता है ना, डिजिटल पेमेंट, मेन गवर्निंग बॉडी है NPCI. सो NPCI के भी ऊपर भी 2020 में अटैक हुआ था. तो यू कैन इमेजिन स्टूडेंट, सी HDFC, ICICI and this airport, are they not having proper protection system? They are having, but the attacker, they try to attack, they build such a smart system that they get the data from the company. Even you won't believe the ISRO in 2019, on ISRO there was one attack. Okay, that attack was malware. Guys, can you believe ISRO के ऊपर भी अटैक हुआ है? तो हम क्या है ना, ISRO, उनके पास तो दुनिया के सबसे बड़े टॉप मोस्ट इंजीनियर्स होते हैं. दे वर ऑल्सो ऑन साइबर अटैक. सो वॉट वी आर, okay, so cyber attack, it can be on a individual, it can be organization, public के ऊपर हो सकता है, government के ऊपर हो सकता है, it can be on anybody, right? It can be on anybody. So we have to protect ourselves from this attack. So the increasing reliance on technology, and why this attack is now increasing? Because technology is increasing. If you remember, like अगर अभी भी किसी के पेरेंट्स के पास कीपैड वाला फोन है, so that phone is having limited functionality. So how attack is possible on that phone? But nowadays we are having smartwatch, we are having smartphones. So since technology is increasing, and because of that technology, these attackers are having what, wide way of doing attack. ओके, सो दे कैन कॉज अ सीरियस प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम. अब जैसे इसरो के ऊपर हो गया, हमारे एयरलाइन के ऊपर हो गया, तो वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है ना. सो दे कैन कॉज अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस फॉर इंडिविजुअल, फॉर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर गवर्नमेंट्स. यस गाइस, okay, so this is what cyber attack. So we have to protect from cyber attack. Now this is going to be one of the eye-opening website for you all. So what I'm going to do, I'm going to just click on this link. Okay, so let me
Okay, so this is going to redirect me to a website known as Threads. So guys, can you all see this? I hope you all are able to see. Yes, आपको दिख रहा है लाइव साइबर थ्रेट मैप. दिस इज अ थ्रेट क्लाउड. एआई से बनाया हुआ है ये आपको क्या बता रहा है कि व्हाट आर द टारगेटेड कंट्रीज टॉप 5 टारगेटेड कंट्रीज बता रहा है. सो यू कैन सी मंगोलिया, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड माकोयो. सो दीज आर द कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा राइट नाउ सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं. एंड कैन यू सी टॉप टारगेटेड इंडस्ट्रीज. द इंडस्ट्रीज आर एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड कम्युनिकेशन. ये सारी इंडस्ट्रीज है जिसपे सबसे ज़्यादा अटैक्स हुआ है. यू कैन सी हाइएस्ट रेट ऑफ अटैक्स पर ऑर्गेनाइजेशन इन द लास्ट डे. Okay, and what are the types of attack which has happened on this organization? एडवेयर हुआ है, फिशिंग हुआ है, मोबाइल अटैक हुआ है. एंड यू कैन सी दिस थिंग द विच इज कमिंग इन रेड कलर. दिस इज नथिंग बट मालवेयर, मेलिशियस अटैक जो बोलते हैं ना, ट्रोजन हॉर्स वायरसेस आ गए, वो ये अटैक है. एंड यू कैन सी हियर सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, मालवेयर अटैक ही हो रहा है. एंड समटाइम यू कैन सी हियर वी हैव व्हाट एक्सप्लॉयटेशन ऑल्सो, एंड देयर कुड बी अ फिशिंग अटैक ऑल्सो. And guys, at the left side you can see this is moving so fast. I'm not able to read what kind of attack is happening over here. Okay, so for you people, I'll just slow down this part so that you can read like what attack is happening. So I'm just going to slow the rate. So I'm just going to make it 2. So can you see now, web server enforcement, DNS, and 11:24 10 seconds, 11:24 11 13 14, मतलब सेकेंड्स में अटैक हो रहे हैं गाइस, सेकेंड्स में अटैक हो रहा है ना. इतना ज़्यादा अटैक हो रहा है. तो आप देख सकते हैं इतनी सारी, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करिए. दिस इज नॉट फिजिकल अटैक guys, this is not physical attack, this is cyber attack. Malware is what? Cyber attack. Phishing is what? Cyber attack. Exploitation is what? Cyber attack. So ये सारे क्या है? cyber attack है. अब देखो यहाँ पे if you are able to read, so you can see here यूनाइटेड स्टेट ने जर्मनी के ऊपर अटैक किया. कौन सा? एक्सप्लॉयटेशन ने. यहाँ पे किसी कंट्री ने इंडिया के ऊपर भी अटैक किया था. सो मेनी कंट्रीज आर अटैकिंग टू ईच अदर. व्हाई दे आर अटैकिंग? क्योंकि उनको एक दूसरे का डेटा लेना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना है. सी यू कैन सी कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट का नेपाल पे अटैक किया. कौन सा अटैक किया? मालवेयर अटैक किया. होप गाइज यू लाइक दिस. येस, so you can bookmark this is threatmap.checkpoint.com. this is a website, you can bookmark this website. ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो चेक करने के लिए कि क्या क्या अटैक्स हुए हैं. और आप कैटेगरी चेकआउट द कैटेगरीज. एजुकेशन है, एजुकेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है. जो भी एजुकेशन वाले ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा हो रहा है और कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा हो रहा है. बिकॉज एजुकेशन वी हैव लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर इन एजुकेशन. गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं. हेंस अटैक्स आर हैपनिंग ऑन ऑल दिस, राइट? ओके, so now we will be moving further. So you can see the attacks which are happening. So we have to protect ourselves. So being an individual, if we protect ourselves, then we can protect our organization as well as we can protect our company also, or our friends, family, colleagues, everyone. Okay, so now we will be understanding cyber crime. तो साइबर क्राइम क्या होता है पहले ये समझेंगे हम लोग. आप लोग मुझे बताइए, आपने कभी ये सारे वर्ड्स देखे हैं? You are from computer science and IT background, so you might have heard all these words. Let me know. And किसी के साथ कभी कोई साइबर क्राइम हुआ है? किसी के साथ कभी कोई साइबर क्राइम हुआ है? Yes. डोंट हेजिटेट टू शेयर ओवर हियर. सबके साथ साइबर क्राइम होता ही होता है, बट कभी कभी हमको पता नहीं चलता है. छोटे क्राइम हो जाते हैं, कभी बड़े क्राइम हो जाते हैं, देन वी कम टू नो, राइट? Okay, no, that's great. If not happen, then that's very good. Okay, so now what is cybercrime? Let's understand cybercrime. It's nothing but what? That's good, very good. If not happened with you all, I'm so happy. So cybercrime refers to illegal activities committed using internet or other forms of digital communication. I'll tell you one example. साइबर क्राइम का मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ.
recently, like my son goes in drawing class. His drawing class teacher is quite old age, and she had one friend, and she was also old age. She was not knowing about all this, like cyber attack, cyber crime, what are all this thing. So she got a call and message like you have to click on this link. She got called that we are going to send you one SMS. You have to click on this link, will be there in SMS. You have to click on that link, and then what will happen, your some problem is there in your bank account. We are unable to verify your KYC. So if you click on this link, it will be done automatically. You don't have to come to bank. So that poor lady, old lady, she clicked on that link, and you know guys, what happened, immediately सेकेंड में टू 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 करके उसके बैंक के सारे पैसे चले गए. अराउंड 4 to 5 लाख रुपीज़ वर देयर इन हर बैंक अकाउंट, और इमीडिएटली ऐसे सेकेंड्स में उसके पैसे चले गए. इमेजिन दैट ओल्ड लेडी, उसके सारे हार्ड एंड मनी तो चली गई ना सेकेंड्स में. हार्डली आई थिंक 12,000 वो अटैकर ने छोड़ दिया था. वो भी पता नहीं 12,000 क्यों छोड़ा, 12,000 छोड़ के गया. सो पीपल आर नॉट नोइंग अबाउट दिस. हेंस हियर वी आर देयर टू एक्सप्लेन यू कि क्या होता है, कैसे होता है, सो दैट यू अंडरस्टैंड. देन यू स्प्रेड दिस वर्ड्स टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स. अपने भाई बहनों घर पे सबको बताना है आपको कि उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को. ठीक है, तो साइबर क्राइम डेली होता है, डेली होता है. ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, अगर इसका डेफिनेशन या वर्ड्स में बोले तो इट इज़ नथिंग बट एन इलीगल एक्टिविटीज़ कमिटेड यूजिंग इंटरनेट. कोई भी इलीगल एक्टिविटी, जैसे किसी ने सुनीता राय के नाम का मेल आईडी बना दिया, और आज आपको मेल, सपोज पाटकर कॉलेज को मेल गया कि सुनीता राय इज आस्किंग सम मनी, यू हैव टू पे हर समथिंग समथिंग, सम मेल वेंट. सो व्हाट पाटकर कॉलेज विल डू, इमीडिएटली क्या मुझे पे कर देगा? नहीं. If Patkar College knows how to deal such situation, they will call Sunita Rai. They will ask, ma'am, you want money? Did you mail us कि आपको पैसे चाहिए? वो पहले मुझसे कंफर्म करेंगे कि आपको पैसे चाहिए क्या, उसके बाद आगे प्रोसीजर फॉलो करेंगे. ठीक है, वाई दे डिड दिस स्टेप बिकॉज दे वेर नोइंग कि वाई सुनीता राय नीड मनी फ्रॉम पाटकर कॉलेज, वो क्यों मांगेगी मुझसे पैसे. तो इसलिए उन्होंने मेरे साथ कंफर्मेशन किया. बट आई टेल यू वन इंसिडेंट स्टूडेंट. देर वॉज वन बॉय एंड ही वेंट टू वॉट हॉस्टल, पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल गया था. एंड पेरेंट्स मुंबई में रहते थे. तो वन डे द पेरेंट्स गॉट कॉल वॉज नॉट फ्रॉम हिज चाइल्ड फोन, किसी अननोन नंबर से था. बट दे सेड कि उसने बोला, मैसेज किया कि आई वॉन्ट मनी पापा, आई वॉन्ट मनी फॉर पेइंग माई फीस, मुझे इतने पैसे चाहिए मेरे फीस भरने के लिए. तो उसके फादर को लगा कि ठीक है शायद इसको चाहिए, हाँ अपना नाम फ़ोटो वोटो भेज दिया कि क्या फ़ी भरना है, ऐसा सब भेज दिया. सो हिज फादर डिडंट कॉल्ड हिम एंड डिडंट कंफर्म हिम दैट भाई तूने ही मुझे कॉल किया है, यू वांट मनी और व्हाट. ही सेंड मनी टू हिज सन एंड देन ही रैंग. तब उसने फ़ोन किया अपने बेटे को, एंड देन ही गॉट टू नो दैट द बॉय डिडंट वांटेड मनी, वो कोई और था जो पैसे ले लिया. राइट, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अटैक. नाउ डेज गाइज इफ़ यू नो, एक अलग ही अटैक आ गया है जहाँ पे आपके फेस चेंज कर देते हैं, आपकी वॉइस चेंज कर देते हैं, आपकी पूरी बॉडी को चेंज कर देंगे, और आप वो नहीं हो बट आपको उस पिक्चर में या वीडियो में बताया जाएगा दिस इज़ दिस पर्सन. ओके, दिस इज़ नोन एज डीप फेस अटैक. डीप फेस अटैक ये एक अलग सा अटैक आया है जहाँ पे आपकी आवाज़ भी चेंज करते हैं. यू आर नॉट स्पीकिंग बट आप सामने लगेगा कि आप बोल रहे हो. सो दिस इज़ हैपनिंग थ्रू AI. सो साइबर क्राइम एक इलीगल एक्टिविटी होता है जिसको जो कैसे किया जाता है बाय यूजिंग इंटरनेट. विदाउट इंटरनेट और विदाउट डिजिटल डिवाइसेस दिस इज़ नॉट पॉसिबल. Okay, this is not possible. So here are some types of cyber crime which I have listed and I will be explaining all this in detail. तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप हो और यहाँ पे ये सारा इंटरनेट है. इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इफ़ यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ देन दिस अटैक
विल नॉट कम टू यू, आपके पास नहीं आ पाएगा ये अटैक, ठीक है। सो हियर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम विच आई हैव लिस्टेड, आई विल बी डिस्कसिंग देम इन डिटेल। जैसे हैकिंग हो गया, हैकिंग मतलब जैसे आई गेव यू एग्जाम्पल लाइक somebody is taking I have sent mail to university, बीच में किसी ने क्या किया, मेरे मेल को हैक कर लिया एंड पेपर्स ले लिया, राइट, ओके, देन दैट इज हैकिंग। यू माइट हैव सीन इन डिफरेंट बॉलीवुड मूवी ऑल्सो, अगर आपने देखा होगा 3 इडियट्स में भी देखो क्या करते हैं, पेपर ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं बॉलीवुड में जहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। देन साइबर स्टॉकिंग, cyber stalking is what somebody is what following you, they whatever you are doing on web, they are following you, whatever you are posting on your social media site, they are downloading, they are saving it somewhere, there is some purpose behind that, they are doing stalking, okay, that is cyber stalking. Then phishing I am going to touch in very detail because this is a attack which everybody is facing and बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रहा है। जो पीपल है जिनको टेक्नोलॉजी टूल्स और ये अटैक के बारे में नहीं पता है, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सो आई विल बी टेकिंग दिस टॉपिक इन डिटेल। साइबर बुलिंग and then malware, again I will be taking this topic, online fraud, identity theft, data breaches, all these are some of the cyber crime which I have listed. There are so many cyber crime which happens daily, okay. So now who is doing the attack, who is doing the attack, guys? Tell me what you think, who is doing the attack? Yes, can you all tell me who is doing the attack? आपको क्या लगता है अटैक कौन करता है? अटैकर, मैम, सिंपल आंसर, अटैक इज डन बाय अटैकर, बट व्हाट इज मोटो बिहाइंड डूइंग द अटैक? पैसा होगा, राइट, नेम, फेम, यस, ब्लैक हैट हैकर, वेरी गुड, ब्लैक हैट हैकर, दैट इज अ व्हाट, they are doing the attack. So attacker कौन होता है? They are the people, और इंडिविजुअल भी हो सकता है, अटैकर कुड बी अ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ अ पीपल, और इट कुड बी अ ऑर्गेनाइजेशन. Yes, hackers, yes, very right. Black hat hackers, yes, they steal the information, they steal the data, right? Yes, hackers. And what they do and why they do? फाइनेंशियल, ओके, फाइनेंशियल अटैक करते हैं जिसमें क्या होता है? ब्लैकमेलिंग, फ्रॉड, थेफ्ट, ओके. आई विल गिव एग्जांपल ओवर हियर, ओके, आई विल गिव एग्जांपल ऑफ ब्लैकमेलिंग ओवर हियर. रिसेंटली आई थिंक 3-4 मंथ बैक फेसबुक पे बहुत ज़्यादा अटैक होता था, सबके अकाउंट हैक हो जाते थे, एंड देन फ्रॉम दैट द अटैकर यूज टू सेंड द मैसेज टू ऑल द फ्रेंड्स इन द लिस्ट, लाइक आपके फ़ोटो के साथ कुछ तो मिसयूज़ करके वो लोग फ़ोटो बना देंगे, सम पोर्नोग्राफी टाइप ऑफ इमेज और वीडियो दे विल सेंड यू एंड दे विल आस्क यू लाइक मनी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, कि मैं आपके सारे फ्रेंड्स को भेज दूंगा, ये सब भेज दूंगा. तो फाइनेंशियल मतलब पैसे कमाने के लिए भी ये करते हैं. Then there is a, yes, very right, financial, for financial people do attack. Then political और state level, military के ऊपर भी अटैक होता है. 2021 में जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है उनके ऊपर भी अटैक हुआ है, उनका पूरा डेटा ब्रीच हुआ है. डेटा ब्रीच मतलब उनका पूरा इंफॉर्मेशन अटैकर्स के पास चला गया था. ओके, सो फेम और कुडोज फन स्टेटस के लिए भी लोग करते हैं, यू नो, फॉर फन एंड स्टेटस पर्पस अटैकर्स डू अटैक. ओके, देन देर इज़ अ कॉज बिहाइंड डूइंग सम अटैक. किसी कंट्री को प्रॉब्लम में डालना है, किसी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम में डालना है और सम ऑर्गेनाइजेशन को, सो देन दैट फॉर दैट पर्पस ऑल्सो अटैक इज डन. और देन देर इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट बिहाइंड डूइंग अटैक. अब सपोज मेरे साथ कुछ क्राइम हो गया, आई वेंट टू साइबर पीपल, अब मुझे जानना है कि मेरे साथ क्राइम कैसे हो गया, मेरा मेल पूरा हैक हो गया है, तो दे और सम फॉर सम पॉजिटिव पर्पस अटैक इज ऑल्सो डन. किसी मिनिस्टर के साथ उनका पीसी किसी ने टेक ओवर कर लिया है, रैनसमवेयर अटैक हो गया है उनके साथ, तो अब क्या करेंगे साइबर पुलिस वाले आके क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, डेटा को डिक्रिप्ट करेंगे. सो फॉर पॉजिटिव पर्पस ऑल्सो अटैक इज डन. ओके, तो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं और जो लीगल हैकर्स होते हैं, वी कॉल देम एज वाइट हैट हैकर्स. ओके, हु डू
hacking or attack for positive purpose. Okay, so even insider people do attack. बहुत सारे disgruntled employee company में ही होते हैं स्टूडेंट्स, पैसों के लिए they sell the data of company, they share the data of company. I'll give example, like you might be knowing tender. कंपनीज के टेंडर आते हैं, है ना. टेंडर मतलब जहाँ पे आपको क्या करना रहता है, एक फॉर्म भरना रहता है. एंड फॉर एग्जांपल सपोज व्हेन मुंबई डिसाइडेड दैट दे वांट टू हैव मेट्रो स्टेशन इन मुंबई, इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ मुंबई. तो उन्होंने जब लॉन्च किया कि हमको मेट्रो बनाना है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आई, भाई हम मेट्रो बनाएंगे आपके यहाँ, हम यस एथिकल हैकर, हम मेट्रो बनाएंगे आपके यहाँ, हम मेट्रो बनाएंगे आपके यहाँ. तो वो क्या करते हैं, वो अपना कोटेशन, दे राइट कोटेशन लाइक दिस विल बी द अमाउंट आई विल गिव यू व्हाट मेट्रो पूरा फर्निश करके सब बना के देंगे. सो देन गवर्नमेंट डिसाइड करता है whom to give contract. सो इन दैट केस यू नो व्हाट हैपन्स, द कॉम्पिटिटर कंपनी एक दूसरे का वो जो अमाउंट होता है ना वो जानना चाहते हैं, सो दैट अगर किसी ने इतने करोड़ दिया है तो मैं उससे थोड़ा कम करोड़ कर दूंगा और मुझे क्या हो जाएगा, मुझे टेंडर मिल जाएगा. Right, so who give information of one company to another company? The person who are working inside that company, we call them as disgruntled employee. वो अपने आप को थोड़े पैसों के लिए बेच देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, है ना. किसी और इस कंपनी का इन्फॉर्मेशन दूसरी कंपनी को दे दिया, उसके बदले उनको क्या मिलेगा, उसके बदले उनको पैसा मिलेगा. सो वो भी एक अटैक था, इस कंपनी का डेटा किसी कंपनी के साथ शेयर करना, दैट इज ऑल्सो अटैक. yes, very nice example. I forgot to mention this example, एम्स वाला एग्जाम्पल रिसेंटली एम्स के साथ भी हुआ था. yes, एम्स के साथ हुआ था. yes, thank you विपेंद्र. so next we will be learning, I hope student you understood what is the meaning of attack. okay, cyber attack क्यों होता है, why people do cyber attack, what is the motto behind cyber attack, right? okay, so now next हमने साइबर समझा, अटैक होता है हमारे ऊपर वो भी समझा. नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज साइबर सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड एज साइबर सिक्योरिटी. प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम साइबर अटैक इज नाउ साइबर सिक्योरिटी. You all gave me example that ma'am put the lock on your door for protecting your house from theft. क्यों किया हमने, मेरे घर को प्रोटेक्ट करना था ना, तो वो हमने घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी, घर पे वॉचमैन लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया. तो दैट आर द रीजन ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर हाउस और दैट आर द वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर हाउस. सिमिलरली आप अपने डिवाइसेस को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, द कंप्यूटर सिस्टम, द लैपटॉप, द नेटवर्क, द राउटर, द फायरवॉल, the system which you are having, how you will be protecting them? You will be protecting them through mechanism known as cyber security, where there are lots of tools and technologies are available जो आपके सिस्टम को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे. okay, so cyber security is the practice of defending computers, servers, mobile devices, electronic system, networks and data from malicious attack. सो दिस इज़ नथिंग बट प्रैक्टिस, जो हमको लाना है, हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है कंप्यूटर्स को, सर्वर को प्रोटेक्ट करना है. डिवाइस, यू पुट पेन, यू पुट पैटर्न, यू पुट योर व्हाट फिंगरप्रिंट, ये सब क्यों रखते हो आप अपने सेल फोन पे? You are already doing security to your devices. You have already applied security to your devices. You protect your laptop by providing password. आप अपने मेल में पासवर्ड लगाए हो, आप अपना मेल का पासवर्ड you don't share with your friends, right? You log out when you log in some unknown place. Why you are doing so? Because आपको पता है कि मेरा यहाँ पे important data है, sensitive data है. If I leave it ओपन देन एनीबडी कैन सी इट. अगर मैंने मेरे मोबाइल फ़ोन में पिन पैटर्न नहीं लगाया, इफ़ आई कीप माई मोबाइल फ़ोन, एनीबडी कैन कम, कैन ओपन, कैन सी माई ऑल द इंफॉर्मेशन, माई ऑल सेंसिटिव डेटा, ऑल माई प्राइवेट डेटा, मेरी कुछ प्राइवेसी ही नहीं रहेगी. hence we require cyber security, right? Hence we require cyber security, right student? So cyber security is nothing but protecting your assets. Assets को protect करना cyber security होता है. तो अच्छा,
अगर हम लोग सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, या तो अगर हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड किया बट पुअर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, रादर देन पुटिंग द गुड लॉक ऑन योर डोर, गोदरेज का बड़ा सा लॉक लगाने की जगह आपने एक छोटा सा जिसको एक ऐसे किया तो टूट जाएगा, देन हाउ योर हाउस विल बी प्रोटेक्टेड. सो रिस्क कॉज्ड बाय पुअर सिक्योरिटी नॉलेज एंड प्रैक्टिस. अगर आपके पास पुअर सिक्योरिटी है तो क्या हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, मॉनेटरी थेफ्ट, आपकी आइडेंटिटी कोई चुरा के आपके नाम पे कुछ और करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. मॉनेटरी थेफ्ट हो सकता है, मॉनेटरी थेफ्ट, पैसे भी आपके जा सकते हैं. आई गिव यू एग्जांपल ऑफ दैट ड्राइंग टीचर, राइट. सैंक्शन और टर्मिनेशन इफ पॉलिसीज आर नॉट फॉलोड. आप अगर पुअर सिक्योरिटी रिस्क है तो उससे टर्मिनेशन, आपकी जॉब भी टर्मिनेट हो सकती है, कुछ और भी कॉजेस हो सकते हैं. सो मेनी आर देयर जो पुअर सिक्योरिटी की वजह से हो सकते हैं. पुअर सिक्योरिटी की वजह से भी हो सकते हैं और आपको नॉलेज नहीं है कि सिक्योरिटी कैसे करें, उसकी वजह से भी हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट, राइट. आई होप यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस सेशन. मे आई नो इन चैट बॉक्स, कैन यू type something in chat box? Type yes if you are learning, type L if you are learning. Yes, yes. Yes, that's great, that's great. So now here what we are having, this is what a cloud. I have shown you cloud words for cyber security. Just see these words, what are there. देखो यहाँ पे बीच में एक बड़ा सा साइबर सिक्योरिटी लिख के आ गया, उसके नीचे प्रोटेक्शन. किसे प्रोटेक्ट करेंगे, अटैक से प्रोटेक्ट करेंगे. किसे प्रोटेक्ट करेंगे, डेंजर से प्रोटेक्ट करेंगे. किसे प्रोटेक्ट करेंगे, फिशिंग से करेंगे. सिक्योर कर लेंगे, डेटा को, हार्डवेयर को सेव कर लेंगे, है ना, वायरसेस से सेव कर लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से सेव करेंगे. सो दीज आर डिफरेंट क्लाउड वर्ड्स, राइट. सो ट्रोजन वायरस से कर लेंगे, आपका जो डिजिटल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करेंगे. तो ये आपका क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी होता है. ओके, सो नाउ विल मूव अहेड स्टूडेंट. नाउ दिस इज व्हाट द पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू. साइबर सिक्योरिटी इज नथिंग बट सेफ्टी. अगर आपने साइबर सिक्योरिटी लगा कर लिया तो सेफ्टी हो गई. जैसे हमने अपने घर के डोर पे लॉक लगा दिया, वेबकैम लगा दिया, देन हमने वॉचमैन भी रखा है, बड़ा सा बंगलो है आपका, वॉचमैन भी रख दिया आपने, तो अपने घर को सेव कर लिया ना. वॉचमैन घर पे आने के पहले देयर विल बी वॉचमैन हु विल इंक्वायर, भाई हु आर यू, व्हाई यू आर कमिंग टू दिस हाउस, आपको किससे मिलना है. वो उसको बाईपास करेगा तब तो आगे डोर के पास जाएगा, डोरबेल रिंग करेगा, राइट. सो सेफ्टी. आई टेल यू एग्जाम्पल, लाइक यू नो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले बहुत सारी सिक्योरिटी चेकिंग होती है. आप जाते हो, आपका पूरा बैग चेकिंग होता है. इवन यू गो ऑन मेट्रो और एयरपोर्ट, वहाँ पे भी देखो बहुत सारी सिक्योरिटी चेकिंग होती है. क्यों चेकिंग होती है, सेफ्टी के लिए ना, कि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, हेंस, राइट. Okay, so we must protect our computers and data in the same way that we secure the doors to our home, है ना. तो वही हमारे कंप्यूटर और डेटा को भी प्रोटेक्ट करना है, सो दैट हमारा सिक्योर हो जाए. अब सेफ्टी क्या होता है, लाइक आई एम ओपनिंग सम मेल, आई हैव सम डाउट इन दैट मेल. उसमें मुझे बोला है कि भाई तुम 5 करोड़ की लॉटरी जीत गए हो. 5 रुपए कोई नहीं देता है, 5 करोड़ की लॉटरी कोई क्या देगा, राइट. तो ऐसा मुझे मेल आया है, तो मुझे पता है ये मेल फेक है, भाई 5 करोड़ रुपए कोई फ्री में आज कहाँ देगा, तो मैं उस मेल को क्यों क्लिक करूँगी. तो वो सेफ्टी है ना, मैंने मेल ही नहीं क्लिक किया, तो मेल का लिंक ही नहीं ओपन किया. सो दैट इज़ अ सेफ्टी. So we must behave in ways that protect us against risk and threats that come with the technology. हमको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे किसके अगेंस्ट बिहेव करना है, व्हाट, रिस्क एंड थ्रेट्स. अब मैं बता देती हूँ ये थ्रेट्स क्या होता है. आई गिव यू वन एग्जांपल, लाइक सपोज एक डोर है, एक घर है, बाहर फ्लड आ गया, बहुत बारिश हो गई है, बहुत बारिश हो गई है और फ्लड आ गया. एंड वो जो घर है ना उसमें एक होल है, एंड द पर्सन हु इज़ इनसाइड दैट हाउस, उसको क्या हो रहा है कि भाई ये पानी आते आते मेरा घर भी फ्लडेड हो जाएगा, मेरे घर के अंदर भी पानी आ जाएगा. तो वो थ्रेट है, राइट. तो जैसे
आपने घर पे लॉक नहीं कराया, तो कोई आके आपके घर पे आपके एसेट्स, दे कैन टेक योर एसेट, दे कैन टेक योर इंफॉर्मेशन, दे कैन स्टील योर डेटा. तो दे ऑल आर नथिंग बट थ्रेट्स, राइट? थ्रेट्स होते हैं. सो वी हैव टू what सेफ्टी एज वेल एज सिक्योरिटी. हमको सेफ्टी भी करना है और सिक्योरिटी करना है. सेफ्टी करेंगे, सिक्योरिटी साथ में आता है. Okay guys, so now I'm going to, before starting this topic, threats and practices, what are the threats, important threats मैं लेने वाली हूँ. बहुत सारे threats हैं. I'm going to take important threats because हमारे पास टाइम कम है, तो मैं important threats लूँगी. And what we should do to what protect ourselves from this threat. But before that, I would like to show you one website, student, and I just want कि आप में से कोई अपना email ID share करना चाहता है क्या? Anybody wants to share email ID? Yes. Yes. Anybody wants to share email ID? So guys, I'm going to show you something if you share your email ID. If not, then I will use my email ID, no problem. Anybody? Have I been pawned? Have I been pawned? Nobody? कोई नहीं शेयर करेगा? No ma'am, we don't want to share the email ID. Yes, who want to share? I will write their name and you can see the magic. कौन शेयर करेगा? विपेंद्र. Okay, my email ID. So guys, you know this email ID I am using when I was student. जब मैं कंप्यूटर साइंस BSc में थी तब मैंने ये email ID बनाया था. तब से ये email ID है मेरे पास. थोड़ा थोड़ा कभी कभी यूज़ हो जाता है. And let me click on this pawn button. Let me click on this pawn button and just see what happens if I click on this pawn button. ठीक है? Oh no, you are pawn. अगर ऐसा आ गया तो आपको डरने वाली बात है. ठीक है? ऐसा आ गया तो डरने वाली बात है. पॉन इन 3 डेटा ब्रीचेस. 3 जगह मेरा डेटा ब्रीच हुआ है. 3 जगह मीन्स व्हाट? माय डेटा हैज बीन यूज्ड बाय समवन. What kind of data? Personal data, personal information. Okay, if anybody would like to share their email ID, let me just type in chat box. I will use your email ID. Now guys, I'll show you where my data breach is done. ये जो मेरा मेल ID है ना, ये कहाँ पे यूज़ हुआ है. I'll just show you. So you can see this is the, you first of all let me just tell you what is the meaning of data breach. This website Have I Been Pawned is used to check out whether your email or phone number is in data breach or not. So what is the meaning of data breach? Breach is nothing but an incident where data has been exposed. Publicly आपका data use हो गया है. ठीक है? So can you see these are the 3 places where my this email ID, इस email ID के साथ मैंने जो भी मेरा data share किया था सब expose हुआ है. Canva. I hope everybody knows about Canva. One is the popular super duper website for creating any graphics related चीज. तो I'm using Canva. अभी भी मैं Canva यूज़ करती हूँ. Canva यूज़ करना छोड़ा नहीं, बट जब ब्रीच हो गया उसके बाद थोड़ा सा आपको प्रोटेक्शन लेना है. So in 2019 the graphic design tool Canva suffered from data breach. 2019 में डेटा ब्रीच हुआ था. अबाउट 137 मिलियन सब्सक्राइबर का डेटा ब्रीच हुआ था. मतलब उनका ईमेल एड्रेस, देयर यूजर नेम, सिटीज, देयर रेसिडेंस एंड द पासवर्ड स्टोर्ड आर यूज्ड फॉर व्हाट सम अदर पर्पस. ठीक है? ये यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ था. Okay, I think you all are typing this email ID, but I am not able to see the email ID. No problem, student. Okay, I think you have understood. I have used my email ID. So you all are saying you have shared the email ID, but I am not able to see. That's okay, no problem. There is another website, Edmodo. अब आप देख लो यहाँ पे मेरे क्या क्या डेटा ब्रीच हो गए थे, क्या क्या डेटा यूज़ हुआ है. मैंने जो भी मेरा डेटा शेयर किया था, राइट? तो क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ? ईमेल एड्रेस, my GIS, my name, my password, my username. So what I have to do when I got to know that data breach is done with me? I have to change my detail.
ठीक है, मुझे मेरा डिटेल चेंज करना है, इस ऐप से थोड़े परमिशन निकाल देने हैं, ऐसे आपको करना है. देन नेक्स्ट इज व्हाट, एडमोडो. आई हैव यूज एडमोडो ऑल्सो. एडमोडो इज वन ऑफ द पॉपुलर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट थिंग्स. तो वहाँ पे भी डेटा ब्रीच हुआ है, एंड अबाउट 77 मिलियन रिकॉर्ड्स कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ ओवर 43 मिलियन यूनिक कस्टमर ईमेल आईडी. 43 मिलियन यूनिक ईमेल आईडी इनको मिल गए, उनके साथ साथ उनके पासवर्ड और यूज़र नेम भी मिल गए. डेटा ब्रीच. नाइट्रो इज अगेन अनदर वेबसाइट जहाँ पे फिर से हुआ है, वहाँ पे भी डेटा ब्रीच हुआ, ईमेल एड्रेस, नेम और पासवर्ड यूज़ हो गया. राइट, गॉट इट स्टूडेंट? सो कैन यू सी नाउ हियर दिस वेबसाइट इज डूइंग व्हाट. यहाँ पे ये बता रहा है कि इतनी वेबसाइट है जो पॉन्ड वेबसाइट है, मतलब इनके साथ डेटा ब्रीच हुआ है. Okay, so these are pawned account. So this is, you can bookmark this website if in future you want to see haveibeenpawned.com. Have I been pawned? Right? Was this useful, student? Type in chat box yes, useful. Yes. Yes. Okay, thank you so much. Thank you so much, Abhijit, Himanshu. Okay, so now we will be moving to threats and practices. Just now, a few minutes back, I just told you threats क्या होता है. Threats जिससे आपको डर है कि कुछ हार्म कर देगा, right? कुछ हार्म कर देगा. So guys, here we have different types of threats: malware, phishing, malicious link, password, browsing in public, data compromise. Super chat you can send me on CS Corner Sunita Rai. You can send me on that channel. Okay. So now let's understand what is malware. So malware is nothing but what? First of all, I would like to give full form of malware. Malware is nothing but malicious software. Malicious का माल ले लिया और सॉफ्टवेयर का वेयर ले लिया. Malicious software को malware बोलते हैं. So these are the software which are designed to compromise a device or a network. आपके जो devices है ना, compromise मतलब उनके साथ कुछ तो problem, data breach हो जाएगा, data leak हो जाएगा, stolen, something will happen. Okay, you won't be able to access your devices, either a device or a network, either a device or network. So here are some of the example of malware. You already know this, but शायद आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता था कि इसको मालवेयर बोलते हैं. वायरस तो आपने सुना ही होगा, आपके पीसी में भी आई होप स्टूडेंट इन योर पीसी यू आर हैविंग एंटीवायरस, राइट? आपके सो एंटीवायरसेस जो होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर होता है, वायरस क्या है? मालवेयर है. बॉटनेट, बैंकिंग ट्रोजन, रैंसमवेयर. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस फ्यू ऑफ देम. बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डीप नॉलेज आपको मैं देने वाली हूँ. ओके, तो मालवेयर स्टार्ट करते हैं. यू कैन सी हियर वर्म्स. ओके, इफ़ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज अ वर्म. ये एक्चुअली में हमारे साइबर का वर्म ऐसे नहीं दिखता है, वो तो दिखता ही नहीं है. कब क्या करके चला जाता है वी डोंट नो. सो दिस इज़ वॉट, ये बायोलॉजिकल वर्म मैंने रिप्रेजेंट किया है जस्ट टू शो यू कि आप इजीली समझ जाओ. सो देर इज़ अ वर्म, सिंगल वर्म which has come to my what? Okay, so this is the worm which has come to my computer, and then what this worm has done, this worm has spread itself to Joe, Anna and Bob. replicate कर दिया, मेरे कंप्यूटर में आया. माई कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू नेटवर्क एंड नाउ इट इज रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ. यू नो वर्म आपको पता है ना, बायोलॉजिकल वर्म एक होता है तो उससे बहुत सारे बनते हैं, वैसे ही ये है. सो अपॉन अराइवल द वर्म में बी एक्टिवेटेड टू रेप्लिकेट. एक से दो, दो से भले चार, वो वाला सीन यहाँ से हो जाएगा, है ना. बहुत सारा कॉपी बना देगा. तो बहुत सारा कॉपी बना देगा तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी पीसी स्लो डाउन हो जाएगी, वर्क नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, नेटवर्क ही बंद हो जाएगा. सो वर्म्स आर नथिंग बट, दे आर नथिंग बट प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर होते हैं, कोड होता है, एक मेलिशियस कोड होता है. वायरस भी मेलिशियस कोड ही है. that replicate itself and sends copies from computer to computer across network connection. So what they do, they replicate themselves.
अपनी कॉपी बनाते हैं और नेटवर्क में ऐसे स्प्रेड करते जाते हैं. हेंस स्टूडेंट, if you I'll give you one example. There was one person who found a pen drive. बहुत अच्छा इंसान था, उसने सोचा भाई मैं इस पेन ड्राइव को मेरे पीसी में लगा के देखता हूँ कि इसका पेन ड्राइव है. इफ आई गेट सम इंफॉर्मेशन आई विल रिटर्न द पेन ड्राइव टू दैट पर्सन. बट अच्छाई का जमाना नहीं रहा हो. ही कनेक्टेड द पेन ड्राइव टू लैपटॉप और हिज कंप्यूटर एंड देन यू नो दैट पेन ड्राइव वॉज फुल विथ मालवेयर. जैसे उसने कनेक्ट किया उसके पीसी में सारे मेलिशियस कोड आ गए. अब वो कुछ ओपन कर रहा है तो नथिंग इज गेटिंग ओपन. All the memory of that laptop has been eaten by viruses, not able to reboot also, not able to restart, nothing. Okay. So now this is what nothing but worms. So independent program that replicate itself and sends copies from one computer. Okay, I will answer your question at the end. So keep posting your questions. Important question we will be taking at the end. Karan, I will take your question at the end. Okay. So now next thread is what? Botnet. So guys, just check out this diagram. Let me just explain you botnet. मैं आपको आपकी कॉलेज की टीचर नहीं हूँ, आपको थेरी पढ़ाऊँगी. आई एम हियर टू गिव यू नॉलेज एंड आई एम हियर टू शो यू लाइक हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे देर इज़ वन दिस पर्सन और यहाँ पे ये बॉटनेट है. यू नो बॉटनेट्स आर अ काइंड ऑफ ज़ोम्बाई. आपने ज़ोम्बाई सुना होगा ना. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे क्या है? अलग अलग डिवाइसेस है. एंड व्हाट दिस डिवाइसेस डू, यू नो, एक डिवाइस क्या करेगा? स्पैमिंग करेगा. स्पैमिंग, अनवांटेड मेल भेजेगा. इतना अनवांटेड मेल भेज देगा कि यू आर नॉट एबल टू सी योर ओरिजिनल मेल. योर इनबॉक्स इज फुल ना. अब आपके जो इम्पोर्टेंट मेल्स है, यू आर नॉट एबल टू सी योर इम्पोर्टेंट मेल. So you can see this PC is doing what? Sending spam to Bob. Now Bob is not able to get its what main or important mail. Now this PC is doing what? It is sending malware send कर रहा है. Billy को malware send कर रहा है. So now Billy is not able to work on his PC or desktop. Now this computer is doing what? Denial of service attack. Okay, what is denial of service attack? Now आई एम अ ऑथोराइज पर्सन ऑफ माई लैपटॉप. मैं अपने लैपटॉप का, मुझे पासवर्ड पता है, मुझे सब कुछ पता है. आई कैन यूज़ माई लैपटॉप, राइट? आई कैन यूज़ माई लैपटॉप. सो दिस डिनायल ऑफ सर्विस अटैक डज वॉट? इट डज नॉट, बीइंग अ ऑथोराइज यूजर, इट डज नॉट अलाउ यू टू यूज़ योर लैपटॉप. सपोज मेलिशियस कोड आ गया आपके पीसी में या कुछ ऐसा हो गया, अब आपकी चीज़ें ही आप यूज़ नहीं कर पाओगे. दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. सो आई गिव यू द एग्जाम्पल. कौन सा एग्जाम्पल मैंने दिया? वो एयरपोर्ट का एग्जाम्पल दिया. दैट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ अटैक, जहाँ पे एयरपोर्ट के लोग अपनी ये जो भी उनके टूल्स थे उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे. सो बॉटनेट इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर. वॉट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर? अ कंप्यूटर विच हैज़ बीन अटैक. Okay, used to create and send spam or viruses or flood a network with a message as a denial of service attack. ठीक है, तो ये कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो क्या करेंगे? दूसरे कंप्यूटर्स को क्या करते हैं? हार्म पहुंचाने के लिए यूज होते हैं. राइट गाइज, डिड यू अंडरस्टूड व्हाट इज बॉटनेट? यस, टाइप इन चैट बॉक्स. yes you understood. Okay, now let's move to the next topic. Next we have ransomware. थ्रेड्स में ही रैंसमवेयर है. अगेन अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, रैंसमवेयर अटैक. सो बिफोर दैट आई विल टेक यू टू दिस वेबसाइट. ये वेबसाइट पे मैं आपको दिखाती हूँ. ये वेबसाइट एक्चुअली एक न्यूज़पेपर का ये है, इंफॉर्मेशन है, टाइम्स ऑफ इंडिया का. सो नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स का है. एम्स रैंसमवेयर अटैक, what it means for health data privacy. You know this ransomware, इसने क्या किया? जो भी हॉस्पिटल्स, एम्स, यू नो इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है एम्स. सो रैंसमवेयर अटैक ऑन द एम्स सर्वर, उनके सर्वर पे ही अटैक हुआ. एंड वंस रैंसमवेयर अटैक हैपन्स, यू नो स्टूडेंट, you won't be able to get your data back. आपको डेटा मिलेगा ही नहीं.
जब तक आप पे नहीं करोगे. You have to pay a huge amount. I remember a few years back, one of my student called me and she told me, ma'am, this happened with me. She told me the entire incident. Okay, उसको एक लिंक आया, एक कॉल आया, केबल प्रोवाइडर का कॉल था. She clicked on that link और फिर उसके साथ ransomware अटैक हो गया. She was not able to access her devices. Okay, तो उसके बाद उसने मुझे बताया नहीं एंड देन आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट हर. सो वॉट दिस रैंसमवेयर डज, दे एनक्रिप्ट और लॉक योर फाइल्स. लॉक ही कर देंगे. यू आर ऑथोराइज, आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड सब कुछ है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया, लॉक कर दिया. वॉट एवर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यू हैड प्रीवियसली, नाउ दे आर नॉट वर्किंग. दे आर नॉट वर्किंग. सो होल्ड्स फाइल्स फॉर रैंसम typically they are obtained via spam and phishing email, unpatched security and vulnerability. ठीक है, unpatched security and vulnerability का मतलब क्या होता है? You have installed antivirus on your system but you haven't updated your antivirus. You have operating system but आपने अपने operating system को update ही नहीं किया. On your mobile is showing you notification that भाई मुझे update कर दो, कुछ मेरा नया update का patch आया है, but आपके मोबाइल में you have so many video and फोटोज़ की आप उसको डिलीट करके अपना स्पेस फ्री करके इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो, तो आपने अपडेट इंस्टॉल ही नहीं किया. So you know why this update comes, why this patches comes? Because daily a new virus, new malware is created. To protect your devices from that malware, a patches comes. So guys, whenever any update comes, just check out whether that update is useful for you or not and install it, right? And guys, you spend so much money, आप खाने पीने पे बहुत सारे पैसे खर्चे करते हो, चाहे जहाँ भी करते हो, बट थोड़ा सा अमाउंट अपना एक एंटीवायरस मोबाइल के लिए भी ले लो. यू नो, ऑन योर मोबाइल यू हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. आपके पीसी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? आपके मोबाइल पे है. अग्री और नॉट, agree or not, type agree in chat box if you are agree with me. Lots of information, lots of personal data you have on your mobile instead of your laptop or PC. Am I right, student? Am I right? Yes. yes. Okay, ठीक है. तो आप उसके लिए भी एंटीवायरस डेफिनेटली लीजिए. May or may not be okay, may or may not be, but see, you have banking app on your mobile, you have your email on your mobile. Are they not important information? Your email, your banking app, your photos are also important information. I'll show you one thing. So I hope here girls are also there. I can see some girls name also. तो गर्ल्स आप लोग ये देखो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट गो टू माई गूगल एंड हियर आई विल जस्ट टाइप वन थिंग. ठीक है, मैं यहाँ पे जाके ना मेरा ही नाम टाइप कर देती हूँ. समबडी वुड लाइक टू गिव देयर नेम. चलो जाने दो, आप लोग नहीं दोगे. आई टाइप माई नेम. ठीक है, मैंने मेरा नाम टाइप कर दिया. ओके, सो सुनीता राय. आई विल गो टू इमेजेस and I will see whether my image is there or not. Girls, this is specially for you. Not girls, boys भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, आपके इमेजेस आएंगे. सो यू कैन सी कि कौन से वेबसाइट पे आपका इमेज अगर नहीं अपीयर हो रहा है ना स्टूडेंट, बी हैप्पी. यहाँ पे अपीयर होके कुछ बहुत बड़ा नहीं होने वाला है. इफ इट इज़ नॉट अपीयरिंग देन बी हैप्पी. नाउ सपोज माई इमेज इज अपीयरिंग ओवर हियर. लिंक्डइन का है, यूट्यूब का मेरा चैनल है, फेसबुक पे मेरे पेजेस हैं, तो मेरे इमेजेस यहाँ पे अपीयर. आई एम वेरी मच श्योर, हाँ ये मेरा ही पेज है. मैंने ये लिंक्डइन है ना, यूट्यूब है यहाँ पे. अगर आपका इमेज कहीं पे ऐसा आपको दिखे कि सपोज ये चलो ये ले लेते हैं, ये भी ठीक है. लेट्स टेक दिस इमेज. सपोज ये मेरा इमेज है और मैं देख रही हूँ कि ये कहीं पे तो यूज़ हो रहा है, बट आई हैव नॉट शेयर्ड माई इमेज ऑन दिस वेबसाइट. हाउ दे आर यूजिंग इट, ये कैसे यूज़ कर रहे हैं मेरी वेबसाइट. अभी ये तो सपोज प्रॉपर टीवी का कोई वेबसाइट है. कोई ऐसा भी हो सकता है कि पोर्नोग्राफी टाइप पे वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं आपके फ़ोटो. तो गर्ल्स आपको क्या करना है, इमीडिएटली जो भी वेबसाइट रहेगा ना, उस वेबसाइट पे जाना है. वहाँ पे देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट अस पेज.
सो कॉन्टैक्ट अस पेज पे आप क्लिक करोगे, दे विल बी हैविंग देयर ईमेल आईडी। वो ईमेल आईडी आप कॉपी करो और उनको मेल करो, प्लीज़ रिमूव माई फोटो फ्रॉम योर वेबसाइट, प्लीज़ रिमूव माई फोटो फ्रॉम योर वेबसाइट। अगर कहीं पे आपको लगता है कि मिसयूज़ हुआ है, स्क्रॉल करो, देखो आपको लगता है कहीं पे आपका फोटो अपीयर हो रहा है जहाँ पे अपीयर नहीं होना चाहिए था, देन यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स, राइट। आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल। येस गर्ल्स, टाइप इन चैट बॉक्स। इवन बॉयज़, आप अपने सिस्टर के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो ये सारी चीज़ें। येस, वॉज दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल बॉयज़ एंड गर्ल्स? टाइप इन चैट बॉक्स येस, यूजफुल। Yes, thank you Saurabh, thank you Preeti, thank you so much. Yeah, yes, thank you Govind for the confirmation. Now let's move ahead. ransomware की बात हम कर रहे थे। ransomware क्या करता है, आपके पूरे फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देगा, पूरे डेटा को एनक्रिप्ट कर देगा, लॉक लगा देगा। अब लॉक लगा दिया तो अब क्या कर सकते हो, यू कांट व्यू एनीथिंग, you can't see anything. So now what will happen, normally loaded onto a computer via a download or attachment link from the email or website. Okay, from email or website. So what will happen here, you accidentally clicked some link, आपको कुछ मेल आया and you click on that mail or that link, और क्या हो गया, आपके साथ ransomware attack हो गया। Can you see this pictures? Check it out, this picture student. What we are having in this picture, here we are having some notifications. अब देखो क्या बोल रहा है, your important files including your disk, USB, photo, video, document are encrypted with our CryptoLocker virus. Then they are saying that if you don't pay us, you will lose your all the file. And if you remove CryptoLocker from your PC, then you will not be able to restore anything, not be able to restore anything, right? And then they have given payment detail, how to do this. Guys, just imagine, आपका खुद का इंफॉर्मेशन अब आप ही नहीं एक्सेस कर पा रहे हो unless you pay them. So here another example I have given. Oops, your file have been encrypted, right? अब देखो बता दिया कि तुम्हारा फाइल एनक्रिप्ट हो गया, यहाँ बता रहा है कि हाउ मेनी डेज और टाइम लेफ्ट फॉर यू, योर फाइल विल बी लॉस्ट ऑन, ये इतने डेज को इतने टाइम में आपका फाइल लॉस्ट हो जाएगा, आप फाइल रिकवर भी नहीं कर पाओगे अनलेस यू पे सम बिटकॉइन टू अस। ओके, एंड देन दे हैव गिवन पेमेंट लिंक। दिस इज रैनसमवेयर अटैक, एनक्रिप्ट कर देगा आपका डेटा एंड अनलेस यू पे वो आपको क्या करेगा, रिटर्न नहीं करेगा। सो दे आर नॉर्मली लोडेड वाया डाउनलोड। डोंट डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। वो जो एक दो सॉन्ग के लिए आप किसी भी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड करते हो ना, डोंट डू दैट। ओके, विल ईदर लॉक द स्क्रीन और एनक्रिप्ट योर डेटा, इट विल लॉक योर स्क्रीन। Once ransomware is uploaded on your computer or your tablet or your phone, it is very difficult to remove without removing all of the data. Now guys, imagine आपके पास पैसा नहीं है, आपको पैसा देना नहीं है, तो आपको अपना पूरा डेटा इरेज करना पड़ेगा, right? Okay, so here you can see this example. Venercy is one attack which is the biggest cyber attack to occur. रैनसमवेयर का सबसे बड़ा अटैक था जिसने 150 कंट्रीज एंड अराउंड 3 लाख कंप्यूटर को हिट किया था रैनसमवेयर अटैक से। ओके, सो जस्ट इमेजिन गाइज, आपका ही चीज आप ही फिर इरेज करोगे, वाइप कर दोगे, तब आपको मिलेगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज रैनसमवेयर। अगेन इट इज मालवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ टू टैकल दिस रैनसमवेयर, हाउ टू टैकल। What you have to do, you have to back up your data periodically. डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट periodically. In case अगर हो गया आपके साथ अटैक, we are going to do prevention. But in case अगर some attack happens with you, then some of the data might be with you. So ensure it's not permanently connected to network. Okay. Patch, keep your software up to date. Whatever antiviruses you have on your system, update them. Okay, so here they have given example that the attack which was successful, those affected computer had not updated. तो वो किस पे हुआ था वो अटैक, जिन्होंने अपने पैचेस को अपडेट नहीं किया था,
and those who updated, they were able to fix that ransomware problem. Attachments, don't click on links from email or SMS, as they could be from untrusted source or they can contain what, malware, right? ठीक है. अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है, लर्न टू आइडेंटिफाई फिशिंग ईमेल्स. आई जस्ट नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट फिशिंग ईमेल्स ओनली. तो आपको फिशिंग ईमेल्स आइडेंटिफाई करना है, विशिंग आइडेंटिफाई करना है, स्मिशिंग आइडेंटिफाई करना है. मैम व्हाट आर दीज? आई टेल यू स्टूडेंट, जस्ट हैव पेशेंस. विशिंग, फिशिंग एंड स्मिशिंग. ओके, सो डू नॉट डाउनलोड और क्लिक सस्पिशियस लिंक्स और फाइल्स. वो जो अर्जेंट वाले मेल होते हैं ना, अर्जेंटली क्लिक ऑन दिस लिंक, उस पर तो कभी क्लिक नहीं करना चाहिए. कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट, बैकअप योर फाइल रेगुलरली. दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस वी कैन फॉलो. लाइक हमको पता है ना, प्रिवेंशन करना चाहिए, प्रिवेंशन, तो ये प्रिवेंशन है, राइट. अटैक हो सकता है, बट अगर आप प्रिवेंशन करोगे देन देर आर लेस चांसेस ऑफ हैविंग अटैक. Now then guys, let's move to the next type of attack, which is nothing but phishing. Phishing is always based on email message. Phishing जो होता है ना, there are three terms: phishing, wishing and smishing. Phishing होता है email message से related, wishing होता है phone call से related और smishing होता है SMS से related. Okay, you get message SMS, click on this link, you will win the lottery, click on this link to add 1000 rupees to your this account, something. So that are SMS. तो उसको हम लोग स्मिशिंग बोलते हैं. अगर आपको कोई फ़ोन कॉल करके या ऑडियो मैसेज के थ्रू कुछ बोल रहा है, बॉट, रोबोट काइंड ऑफ थिंग, दिस एंड दिस, और फिर आप उनकी बातों में आ जाते हो, वो विशिंग है. ओके, एंड फिशिंग इज बेस्ड ऑन ईमेल. Phishing is targeted attempt to steal sensitive information such as account credential or financial information from a specific victim. ठीक है, ये क्या करता है, फिशिंग क्या करता है, ये एक अटैम्प्ट है जो क्या करेगा, आपको ईमेल भेजेगा और उस ईमेल के थ्रू आप अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर दोगे. सो कॉमन कॉज ऑफ डेटा ब्रीचेस, डेटा ब्रीच किसके थ्रू होता है, फिशिंग के थ्रू ही होता है. Sent to small group or individual and they use what, social engineering tactics. Social engineering tactics मतलब आपके जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, मेल भेज दिया, मैसेज भेज दिया, उनके थ्रू. 93% of incident or breaches happen through phishing. Now I'll give you few example. Check out this mail and tell me what you can find in this email. आपको क्या लग रहा है, is this mail fake or correct? Check out this mail, student, and tell me what you think. Is this mail correct? This mail is from citibank.com. Is this mail correct or some problem is there in this email? No problem. Fake mail. Okay, how you got to know that this is fake mail? Yes, Abhijit, how you got to know this is fake mail? No, it's not fake mail. Okay, ठीक है. Okay, that's okay. चलो. Now I'll tell you, this is fake mail. This is phishing mail. This mail looks like clear bank का mail, but guys, this is fake mail. Okay, now there are few tips I will give you how you will get to know that this is fake mail. सबसे पहले तो क्या है इस मेल में ना, to unlock accounting. Okay, so this is a security alert. You requested to help you protect your account. Your account has been blocked. ठीक है, ऐसे बोल रहा है your account has been blocked. 219, you have exceeded the number of 3 failed login attempts. So you know phishing mail, they have poor grammar. सबसे पहला तो उनका ग्रामर पुअर होता है. अब यहाँ पे देखो, the number of 3 failed login attempt. To unlock your account, please your account. इसका क्या मीनिंग है भाई? To unlock your account, please your account. Thank you for your cooperation, sincerely yours, ऐसे करके कुछ लिखा है. So the first thing to remember कि phishing mail कैसा होता है, उनके ग्रामर पुअर होते हैं.
उनके ग्रामर पुअर होते हैं, बहुत ही पुअर ग्रामर होता है। दूसरी बात पता है क्या होता है, व्हेन यू गेट मेल फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम सम ऑफ द अननोन पर्सन, पीपल, और कहीं से आया है, आप उस मेल पे ऐसे माउस ओवर करो, सो समटाइम हियर समथिंग एल्स इज रिटन सिटी बैंक, और यहाँ पे जो है ना मेल आईडी कुछ और रहता है। डू दिस आई जस्ट शो यू हाउ टू चेक दिस। ओके, लेट मी जस्ट गो टू दिस, मेरे इनबॉक्स में जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गो ओवर हियर। सो ये हाइड कर देते हैं, और यहाँ पे जैसे इंडसइंड बैंक लिख दिया है, सो यू जस्ट टेक माउस ओवर हियर, इफ दिस इज फ्रॉम इंडसइंड बैंक, तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक की ही ईमेल आईडी रहेगी, राइट। व्हाट हैपेंस इन फिशिंग ईमेल, दे चेंज दिस, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे इंडसइंड बैंक दिखाएंगे, और वहाँ पे कुछ और रहेगा, राइट। सो दैट इज नथिंग बट वन वे टू फाइंड वेदर द मेल इज phishing mail or not. Check out this mail and tell me what's the problem in this mail. Yes, what's the problem in this mail? Is this mail perfect or can you see is any problem in this mail? मैंने highlight भी किया है, okay. सो इफ़ यू सी दिस इज द फॉर्मल मेल, तो अब सबसे पहले आप देखो इसका ग्रामर ही बहुत सारा मिस्टेक है। या द पेमेंट विल बी पोस्टेड इन 1 days 1 days में पेमेंट पोस्ट होगा। चेक इनवॉइस जनरेटेड फॉर दिस .com एज यू आस्क्ड, ओके। पासवर्ड की स्पेलिंग देख लो, चेक आउट द स्पेलिंग ऑफ पासवर्ड, शॉर्ट फॉर्म्स आर यूज्ड, यस एग्जैक्टली तन्मय, शॉर्ट फॉर्म्स आर यूज्ड। You have to paste it to be able to view the attached file, okay. So many grammatical mistakes, तो this way you can guess कि हाँ ये phishing email है, ऐसे मेल को कभी रिप्लाई मत करो। check out this one। So what is happening over here, this is nothing but again मेल ही है, ये आईफोन से मेल फेक है, राइट। दिस इज फेक मेल, यस। सो हाउ दिस इज फेक मेल, यू कैन सी यहाँ पे सबसे पहले सपोज आई गॉट दिस मेल, तो सबसे पहले ऊपर तो इवॉन करके एक नाम दिया है, सपोज वो मेरा सीईओ है, मैंने देखा मेरे सीईओ के नेम से मेल आया है। सो इफ द सीईओ इज सेंडिंग मेल टू मी, तो उनका लैंग्वेज तो सीईओ के जैसे होगा ना, यस, टू मेनी शॉर्ट फॉर्म्स। I know my CEO, I know what type of language my CEO is using. Now in this email, सबसे पहले तो ऐसा है, this originated from outside, you know, suppose I am from Khalsa College, I have got my domain ID gnkhalsa.edu.in, तो अगर Gmail से मुझे कोई मेल आता है तो मुझे सबसे पहले यही मैसेज आ जाता है कि दिस ईमेल इज़ फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहला तो पॉइंट विल बी दिस ईमेल इज़ नॉट फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन, आई शुड नॉट लुक इनटू दिस मेल, यस। देन अब उसके बाद देखो इनकंसिस्टेंट ग्रामर, कैन यू सी इनकंसिस्टेंट ग्रामर, यहाँ पे देखो आई स्मॉल में लिख दिया है, फ्रेजिंग प्रॉपर नहीं है, और यहाँ पे क्या सस्पिशियस लैंग्वेज यूज किया। आई एम प्रेजेंटली इन द मिडल ऑफ द मीटिंग, सो यू कैन ओनली रीच मी थ्रू हियर। भाई इफ यू आर इन द मिडल ऑफ द मीटिंग, हाउ यू आर सेंडिंग मेल? if you are sending mail, that mean you can call me also, right? तो आपको ये सारी चीज़ें देखना है, ऑब्जर्व करना है, एंड आपको लगा भाई नहीं मेरे सीईओ ने मुझे मेल किया है, कॉल योर सीईओ, मैसेज योर सीईओ, अनलेस यू गेट कंफर्मेशन, आगे कुछ नहीं करो, लिंकिंग जो भी है कुछ नहीं करो, राइट स्टूडेंट। सो दिस इज नथिंग बट अगेन एग्जाम्पल ऑफ फिशिंग। आई होप फिशिंग इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ नेक्स्ट इज स्मिशिंग। स्मिशिंग क्या होता है भाई? व्हाट इज स्मिशिंग? इट इज बेस्ड ऑन टेक्स्ट मैसेज। यू गेट टेक्स्ट, बैंक से टेक्स्ट आ जाता है, राइट? वी हैव ट्राइड टू कॉन्टैक्ट यू, भाई इन्होंने हमको बहुत ट्राई किया कॉन्टैक्ट करने का। वी हैव लिमिटेड योर अकाउंट ड्यू टू रिसेंट एक्टिविटी, उन्होंने मेरा अकाउंट की लिमिट कर दिया, अब मुझे उसको अनलिमिटेड या कुछ करना है तो इस लिंक पे। बैंक क्यों ऐसे करेगा? वाई बैंक विल डू दिस? बैंक विल डू दिस, बैंक मुझे कॉल करेगा या मुझे बैंक को, अगर सपोज आई गॉट दिस मैसेज फ्रॉम बैंक, आई शुड कॉल बैंक एंड आई शुड आस्क बैंक, did you limited my account? What activity I didn't perform on my account? This is your responsibility also. If you are getting any mail, any fake message, any voice message,
आप रेस्पॉन्ड उनको नहीं करो, बैंक का नाम लेके आ रहा है, कॉल योर बैंक, आस्क इन बैंक। अब यहाँ आर सिक्योरिटी टीम हैव ट्राइड टू कॉन्टैक्ट यू रिगार्डिंग योर ऑनलाइन अकाउंट, लॉग इन टू रीएक्टिवेट, मतलब आपका अकाउंट बंद हो गया, अब आप नहीं कर सकते। ये देखो बहुत बार मैसेज आया, we have identified some unusual, I hope you all have seen this type of SMS, I also have received. So we have identified some unusual activity on online banking, log in via this to avoid the account suspension. तो कोई जो बंदे हैं ना, the poor people who are not knowing all this thing, उसको तो लगेगा कि हिंदी में मैसेज भेज दिया या ऐसे कुछ कि आपकी अकाउंट की सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, आप इस पर क्लिक कीजिए, बेचारे तो क्लिक कर देंगे ना। Hence student, whatever I am sharing with you all today, you have to share with your friends, family, your brother, sister, relatives के साथ उनको बताना है, because they might be not knowing. अगर उनको पता है that's great thing, नहीं पता है तो you should tell them all this thing. Always you are from CS and IT background, you always teach your parents all this thing, don't ever do all this, क्लिक नहीं करो, ये सब आप उनको बताओ, बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, इफ दे आर दैट्स ग्रेट। ओके, यस, थैंक यू सौरभ। नाउ स्टूडेंट, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर फिशिंग। सो फिशिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल बी चेकिंग द सेंडर। हमको कोई वार्निंग साइन लग रहा है, कुछ हमको यहाँ पे स्ट्राइक हो गया दैट दिस इज नॉट प्रॉपर मेल, फेक है, मेलिशियस लग रहा है, जो हमको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, यू हैव वॉन द लॉटरी, प्लीज सेंड द बैंक डिटेल, आपके बैंक का IFSC कोड दे दो, आपके बैंक का नेम दे दो, आप ये सारा डिटेल दे दो। कोई क्यों मांगे, कोई क्यों देगा आपको फ्री में पैसे। डोंट क्लिक एनी लिंक्स अनलेस यू गारंटी, ओके, यूज अ ट्रस्टेड मेथड फॉर कॉन्टैक्टिंग। अगर कंपनी या जो जहाँ से भी मेल है आपको कॉन्टैक्ट करना है तो ट्रस्टेड मेथड, फोन कॉल करके बात करके उनसे तभी आप करो। मार द ईमेल एज स्पैम एंड कॉन्टैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। किसी कंपनी से आया तो स्पैम, उसका स्पैम कर दिया तो आपके इनबॉक्स में कभी आएगा ही नहीं, राइट। नेक्स्ट थ्रेट वी हैव एज मैलिशियस लिंक। यू मे गेट मैलिशियस लिंक। आप अगर उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको किसी कॉपी कैट डोमेन पे ले जाएगा। कैन यू सी हियर example.com, सम शॉर्टेड लिंक्स आपको आ जाते हैं। डोंट एवर क्लिक ऑन दैट शॉर्टेड लिंक्स, कभी नहीं क्लिक करो। आपको लग रहा है क्या आपसे रिलेटेड है, नहीं है, नहीं क्लिक करना है मैलिशियस लिंक। सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर मैलिशियस लिंक, आप पहले माउस ओवर कर लो, आप देख लो वहाँ पे जो दिया है और उसके बाजू में जो फुल फॉर्म आ रहा है वो सब क्या है। ऑलवेज चेक द डेस्टिनेशन, एंड जब आप डेस्कटॉप पे करोगे ना तो माउस ओवर करो, देन यू विल कम टू नो फ्रॉम वेयर द मैसेज और मेल हैज़ कम। एंड व्हेन यू आर डूइंग ऑन मोबाइल पे जस्ट ऐसे थोड़ा क्लिक करके रखोगे, होल्ड फॉर सेवरल सेकेंड, यू विल कम टू नो फ्रॉम विच वेबसाइट द लिंक इज ओरिजिनेटेड, राइट। Okay, now next guys we have okay, so I'll just quickly take because your questions are also there. Password security है next, password security. So we have so many accounts, right? We have account in bank, we have college account, so many account, classroom account, Gmail account, so many places we have to create password. Okay, so always create what different password, because password are susceptible to brute force attack. उन पे brute force attack हो जाता है। I'll just show you one diagram, this table, and then I will explain. Check it out, this table, what is there in this table, password cracking, okay, password cracking, dictionary attack and brute force attack. Many of us give password or use password, either our name, our phone number, our parent name, friend name, something, some important book which we have read or something which we like. So never use dictionary word because they are very easy to break. Brute force attack मतलब guessing के थ्रू अटैक हो जाता है। ब्रूट फोर्स अटैक यू ऑल्सो डू, आप अपने पेरेंट्स या अपने ब्रदर सिस्टर के मोबाइल को आपको लेना है, आप उनका पैटर्न या पासवर्ड ट्राई करते हो, राइट। सो डिक्शनरी अटैक इज व्हाट सम पीपल यूजेस डिक्शनरी वर्ड, इसलिए डिक्शनरी वर्ड्स कभी नहीं रखना है, इजीली ब्रेक हो जाता है।
So check it out student, if you are keeping your password like your relative name, your interest, your personal information, can you see 5 मिनट में ब्रेक हो जाता है, 5 मिनट में ब्रेक हो जाता है। सोशल इंजीनियरिंग 2 मिनट्स, अमेरिकन डिक्शनरी लेस देन 1 सेकेंड, 4 कैरेक्टर 8 कैरेक्टर ऐसे अपने छोटा छोटा, तो यहाँ पे देखो बताया। बट इफ यू आर कीपिंग योर पासवर्ड ऑफ 12 कैरेक्टर्स एंड योर पासवर्ड इज अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक है आपका पासवर्ड, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, राइट। अल्फा न्यूमेरिक प्लस 10 कैरेक्टर्स और ज़्यादा, तो 500 ईयर्स। सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक रखा तो 96 ईयर्स। हेंस ऑल बैंकिंग वेबसाइट एवरीवन सेज क्रिएट अ पासवर्ड ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन। अल्फ़ाबेट भी डालो, नंबर्स भी डालो, स्पेशल कैरेक्टर भी डालो, अपर केस भी डालो, लोअर केस भी डालो, सब कुछ डालो। क्यों डालो? सो दैट ब्रूट फोर्स शुड नॉट हैपन विथ योर पासवर्ड, इट शुड नॉट बी इजीली ब्रेक। कोई ट्राई करेगा तब तक आपको मैसेज आएगा, आप चेंज कर लोगे, है ना। लेस देन 1 सेकेंड, लेस देन 5 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट में तो हम पासवर्ड चेंज ही कर लेंगे ना, राइट। So hence password security is very very important. It is susceptible to brute force attack. Your password can be hacked. Your password is what susceptible to malware, phishing और data breach. I have shown you in my case also. मेरे पासवर्ड के साथ data breach हुआ है. Immediately I change my password, right? Best practices password security. पासवर्ड सिक्योरिटी, अपने पासवर्ड को लॉन्ग, यस तन्मय राइट, कॉम्बिनेशन रखना है, लॉन्ग, कॉम्प्लेक्स, यूनिक, रोटेटिंग। चेंज योर पासवर्ड, एक ही पासवर्ड को सालों साल मत रखो, चेंज इट। बैंकिंग दे हैव फीचर ओनली आफ्टर 365 डे, अगर आप पासवर्ड नहीं चेंज किए ऑटोमेटिकली इट टेक्स यू टू चेंज पासवर्ड पेज, राइट। होप you have seen this in banking website. If you don't change password, some bank having like after 180 days you have to change password, some bank is having 365 days you have to change your password. So use one password per account, one password per account. And guys, never have so simple kind of password. Can you see this complicated password? Okay, so have complicated password, बड़ा सा password रखना चाहिए। Okay, so best practices, that is password security. We can follow this practice for creating password. You can teach this to your parents also, right? Okay, now next comes what? Browsing in public, right? Public में browsing करते हैं। How many of you use जो रेलवे स्टेशन पे वाईफाई होता है फ्री में जो है, how many of you have used it? Yes, or any Wi-Fi which is publicly available, have you used it? Yes guys, जो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं वो आपने कभी यूज़ किया है ना। यस यस यस, नेवर डू दैट यार, नेवर डू दैट यार। ओके, सो मे नॉट बी ट्रस्टवर्थी। ये सपोज दैट वाईफाई और इज ऑफ योर नेबर का वाईफाई है, तो आप उसने आपको पासवर्ड बता दिया, आप यूज़ कर लो, ट्रस्टवर्थी है तो यूज़ कर लो, बट ट्रस्टवर्थी नहीं है, नेवर यू। ब्राउजिंग इन पब्लिक, व्हाट डज इट मीन? आप पब्लिक प्लेस पे ब्राउज कर रहे हैं, सो पब्लिक प्लेस पे नेवर डू व्हाट एनी सेंसिटिव ब्राउजिंग ऑन पब्लिक प्लेसेस, राइट, बिकॉज यू मे नॉट नो हु इज वॉचिंग टू यू, right, who is watching to you. I'll give an example. Like there was one shop, the shop they had CCTV, and the place where people has to swipe the card for payment, just above that they had the camera, and on the device they had one chip associated or connected on the payment device. As soon as you swipe your card, all the information of your card, कौन सा information, the name displayed on your card, the expiry date and the card number, ठीक है, वो कार्ड में आ गया, वो डिवाइस ने फेच कर लिया, जो पेमेंट के डिवाइस के नीचे लगाया है उन्होंने चिप, और आपने क्या किया, अपना पिन डाला, वो सीसीटीवी फुटेज ने कैप्चर कर लिया, सीसीटीवी फुटेज ने भी कैप्चर कर लिया, राइट। So now what is left?
अब क्या करेंगे, वो आपका कार्ड क्या, एक तो एक एक मेटल का शीट ही है ना, उस पर बना देंगे। पिन तो उनको कैमरा से मिल गया है ना। हेंस ब्राउजिंग इन पब्लिक प्लेस इज वॉट, नेवर ब्राउज करो। आई एम नॉट सेइंग डोंट ब्राउज, वी कांट स्टॉप ब्राउजिंग, राइट, वी कांट स्टॉप ब्राउजिंग, बट डोंट डू इम्पॉर्टेंट बैंकिंग वैंकिंग का ये सारा चीज पब्लिक प्लेस पे ज़्यादा मत करो, बिकॉज यू डोंट नो हु इज वॉचिंग यू, who you are online, when you are online. So browsing in public place may not be trustworthy. Okay, so they could share your information to other companies who operate in countries without any data protection, right? So 44% of stolen device were left in the public place. People क्या करते हैं, public place पे क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं अपना डिवाइस और वहाँ पे भूल के चले जाते हैं। सो अगर आप प्रोटेक्ट करके नहीं रखोगे अपना डिवाइस और फिर आप भूल के चले गए, सो यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन विथ यू, राइट? सो नाउ व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हेन यू आर ब्राउजिंग इन पब्लिक प्लेस? अवॉइड यूजिंग पब्लिक वायरलेस नेटवर्क अनलेस इट इज नॉट very like urgent. Don't use what public wireless network. ये जो आप लोग कैफ़े का सब बोल रहे हो ना, अर्जेंट है तो यूज़ करो ना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। सी नेवर ट्रस्ट एनीबडी गाइस, नेवर ट्रस्ट एनीबडी। मेरा डेटा है, मेरा डेटा चला जाएगा, मेरा इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, मेरी प्राइवेसी चली जाएगी, मेरे फोटो वीडियो शेयर हो जाएंगे, उससे तो मुझे लॉस होगा ना। आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। सो अवॉइड वॉट, पब्लिक वायरलेस नेटवर्क अवॉइड करो, मैक्सिमम अवॉइड करो, चाहे वो कैफ़े का हो, होटल का हो, चाहे किसी चीज़ का हो, ठीक है। हाँ, अगर आप कहीं अर्जेंट मीटिंग के लिए गए हैं, आपको चाहिए, आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लो वहाँ के साथ, क्योंकि शायद लैपटॉप पे आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, किसी आपको पीपीटी बनाना है, समथिंग। यूज़ रेप्यूटेबल वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ कर लो। बी माइंडफुल ऑफ सराउंडिंग्स। ऐसे बस आप ब्राउज कर रहे हो, चैट कर रहे हो, देख रहे हो, ऐसे नहीं करना। यू हैव टू सी हु आर द पीपल अराउंड यू। आई गिव एग्जाम्पल, नाउअडेज ये बहुत हो रहा है। यू माइट हैव सीन देयर वर वीडियो फ्लोटिंग ऑन दिस व्हाट्सएप ऑल्सो। You know, nowadays there are chargers available at public places, right? Chargers होते हैं public places पे available. You can connect your mobile and you can charge. USB लगा रहता है already, USB cable. You can put USB cable and you can charge it, right? So I'll give the example. So there was one lady whose mobile was about to die, battery drain हो गया था. So she came at the charging point. She came at the charging point, and there one boy and one lady was there. They were also like charging. So she didn't had her own data cable for charging that, or USB cable for charging mobile. So then she looked around, and then the both person who were standing there, they offered like, हाँ भाई ले लो, मेरा ले लो, आपका सब मुझे मिलने वाला है, डेटा केबल ही आप ले लो। ओके, सो दे ऑफर्ड दैट डेटा केबल टू हर, एंड देन शी वॉज लाइक इनोसेंट लेडी, बेचारी, उसको क्या पता था उसका सब चला जाएगा। शी जस्ट पुट दैट केबल और चार्जिंग की। अब वो जो केबल था ना, यूएसबी केबल, वो बहुत एक अलग टाइप का केबल था जो आपके मोबाइल का सारा डेटा कलेक्ट कर लेगा और उनके सर्वर पे डाल देगा। सो एज सुन एज शी पुट हर मोबाइल, वो केबल उसने अटैच किया, सारा डेटा इनके पास आ गया, राइट, इनके पास आ गया। सो हेंस चार्ज करो, अपने केबल से चार्ज करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप चार्ज नहीं कर सकते, यू कैन चार्ज, बट यूज़ योर केबल, डोंट यूज़ एनीबडी एल्स केबल। व्हेन शी रीच हर होम, जब वो घर पे पहुँच रही है, तो फिर मोबाइल वैसे ही म्यूज़िक देने लगा, SMS का। व्हाट हैपेंड, सडनली एवरीथिंग गॉन, कुछ नहीं बचा। देन शी रियलाइज, ओ क्या हुआ, मैंने कहाँ किया, मैंने तो किसी को मोबाइल दिया नहीं था। देन शी रियलाइज देयर वर 2 अननोन पर्सन एंड शी टुक देयर USB केबल एंड शी लॉस्ट एवरीथिंग, राइट। तो इसलिए क्या करना है, बी माइंडफुल ऑफ सराउंडिंग्स। लोग हैं बट सबके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप अपना कैरी करो, नहीं है देन देखना पड़ेगा। ओके, प्रिकॉशनरी एप्स, डू यू ऑल नो अबाउट दिस? फाइंड माई फोन एंड रिमोट वाइप। Do you all know Find My app and remote wipe? Hello guys, आप सब सो गए हैं क्या?
Anybody knows remote wipe and find my app? Yes, very good Saloni, Abhijit, आप सबको पता है. Yes, so always have this kind of app, find my device and remote wipe. ये सारे apps अपने मोबाइल में रखिए. So ये सारे क्या है, अगर कोई किसी को आपका मोबाइल मिल भी जाएगा तो आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो, अपना डेटा वाइप. येस, वेरी गुड गोविंद. ओके, so browsing in public place, this is again an example. One more example I would like to give, like ये जो मैसेज ये सब आते हैं हम लोग immediately without reading it, without analyzing it, we just click on. So there was one lady, she went for shopping mall, she was doing shopping. Suddenly she got a message that 15,000 credited to your account. She was surprised. 15,000 credited to account? How? Who credited? ओके, कोई और रहता तो खुश हो जाता, चलो भाई 15,000 मिल गए. 15,000 किसने क्रेडिट किया? सो सडनली शी गॉट कॉल फ्रॉम वन पर्सन. द पर्सन सेड, hello madam, there was some mistake from my brother. Rather than having my account number, he wrote one digit or something, some mistake he did, and this much amount transferred to your account. Did you receive 15,000 amount? The lady thought, yes, how he got to know that 15,000 amount she received? So she said, yes, तो मैडम वो हमारे पैसे थे, गलती से मेरे ब्रदर ने आपके अकाउंट में डाल दिया. वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ रिटर्न कर दो हमारे पैसे. वी आर इन अर्जेंट नीड, वी हैव टू गो फॉर हॉस्पिटल एंड समथिंग लाइक दैट. सो द लेडी वॉज लाइक, हाँ ठीक है, आप आके ले जाओ, मैं कैसे आपको दूँ. दे सेड, वी हैव टू रश फॉर हॉस्पिटल. आप क्या कीजिए, हम आपको एक लिंक देते हैं, वो लिंक पे आप क्लिक करके आप कर दो. सो शी सेड कि मैं अपने बैंकिंग से करती हूँ आपको ट्रांसफ़र, आप अपना अकाउंट नंबर एंड गिव ऑल योर डिटेल्स. देन दे सेड कि नहीं मैम, देर इज़ सम प्रॉब्लम इन माई अकाउंट, आपके यहाँ से कुछ ऐसे बढ़िया रीज़न बता दिया. Then he gave link to that lady, and you know, once she clicked on that link, immediately उसका पूरा बैंक खाली हो गया. See, she was like, कितनी हेल्पिंग नेचर की थी कि भाई हाँ आ गया, आप अपने पैसे लेके जाओ. बट वन मिस्टेक, जस्ट क्लिकिंग ऑन दैट लिंक, लाइक हर हार्ड एंड मनी वाइप्ड ऑफ, राइट. तो इसलिए हमको क्या रहना है, माइंडफुल रहना है. हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या मैसेज आ रहा है, क्या है, किसी को इमीडिएटली रिप्लाई नहीं देना है. एंड वेन एवर दिस काइंड ऑफ अटैक्स आर देयर, वहाँ पे अर्जेंसी बहुत दिखाते हैं, मुझे बहुत अर्जेंट है, ये है वो है, बहुत अर्जेंसी दिखाते हैं. सो यू हैव टू remember all this thing, right student? Yeah. Okay, so now next threat is data compromise. What is data compromise? Your information, your personal information has been leaked. Somebody using your personal information, right? कोई और आपके नेम को यूज़ कर रहा है, आपके डेटा को यूज़ कर रहा है, आपके फोटोज़ को यूज़ कर रहा है. So this data compromise may come from what? Phishing, or they can be from hacking or malware, or they can be from simple negligence. ये सारे reasons हैं. Because of all this, what happens? Data compromise happens. Okay? Yes student? Yeah. Okay, so now what is the best practice for data compromise? Storing sensitive information. Do not store sensitive information into your flash drive. USB ये सारे में अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मत स्टोर करो, बिकॉज यू कैरी दैट, दे आर पोर्टेबल, यू कैरी दैट एनीवेयर. इफ़ यू फॉरगेट, एनीबडी कैन यूज इट, राइट. अगर आपने उसको एनक्रिप्ट करके नहीं रखा है, दे कैन सी इट. सो नेवर स्टोर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट? पोर्टेबल डिवाइसेस और फ्लैश ड्राइव्स, USB वाले जो होते हैं. यू कैन स्टोर योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन द एनक्रिप्टेड, मतलब हार्ड डिस्क पे आप स्टोर कर सकते हो, बिकॉज यू कैन एनक्रिप्ट योर हार्ड डिस्क, राइट. शेयरिंग, whom to share, you have to decide who is authorized. In your family, your parents are authorized, you can share your information. आप पासवर्ड अपनी फैमिली पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो, यू कैन शेयर इट विथ योर ब्रदर, बट जस्ट थिंक बिफोर शेयरिंग टू योर व्हाट फ्रेंड्स. योर फ्रेंड्स, थिंक, आज आपका वो फ्रेंड है, 2 साल 4 साल 6 महीने बाद आपके साथ कुछ फाइट हो गई, रिवेंज लेने के लिए वो आपके साथ कुछ करने लगेगा. थिंक, बी माइंडफुल.
ओके, सो चेक द ईमेल CC whenever you are getting email. ईमेल में कौन कौन है, CC में कौन कौन है, check that and then reply. There is a button reply all, right? There is a button reply all, but check who are there in CC and who you are replying. Secure network. Are you using secure network? You are doing online transaction. Check it out whether you are doing that transaction through HTTPS as secure website है कि नहीं है. Okay, so you have to check whether it is HTTPS or not. The website is secure or not. I'll just show you the thing. HTTPS का मैं आपको बता देती हूँ. So can you see this log? This log is there. So this log guarantees that this website is secure and here is all the information about this website. यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे उसका पूरा information है. Like this website is secure website. Here you can see connection information about this website. You can see their certificates. Those who are in TY, they will be learning all these certificates. क्या होता है? This is the information about the certificate information about the organization, and this certificate is issued when the organization is genuine. फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है. सो ये किसी को भी इशू नहीं हो जाता है, तो इसलिए आपको देखना है कि ये वेबसाइट पे लॉक लगा है. लॉक कब होगा? व्हेन इट इज़ व्हाट? HTTPS, राइट स्टूडेंट? सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस. सो डेटा कॉम्प्रोमाइज़ कब नहीं होगा? जब आप अपना डेटा क्या करोगे? ये सारे प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे. Do you think deleting your sensitive information, just pressing delete button or deleting your data from your devices is enough? That goes to recycle bin. But guys, you know there is a concept or there is a subject known as cyber forensic. Whatever you delete from your PC, आप delete कर देते हो ना, तो भी वो डिलीट नहीं होता है. सिर्फ वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शोज दैट इट हैज़ बिन डिलीटेड. इट शोज यू फ्री स्पेसेस, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट डिलीटेड. देर आर टूल्स बाय विच वी कैन रिकवर द डेटा. दैट्स व्हाट द रोल ऑफ साइबर फॉरेंसिक. साइबर फॉरेंसिक में वही करते हैं. तो आपको लग रहा है कि आपने ये डेटा डिलीट कर दिया तो वो डिलीट हो गया, बट नॉर्मल डिलीशन इज़ नॉट इनफ. हाँ, सिर्फ डिलीशन करना इनफ नहीं है. शिफ्ट डिलीट किया तो हाँ, रिसाइकल बिन से तो किसी को नहीं मिलेगा. ओके, गॉट इट स्टूडेंट? यस 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 हिमांशु, थैंक यू. यस, सो दिस इज व्हाट माय एडवाइस स्टूडेंट. ऑलवेज टेक दिस एडवाइस. आई ऑलवेज टेल टू माय स्टूडेंट, या मेरे जितने भी ऑडियंस है मैं सबको बोलती हूँ, 80% ऑफ द साइबर क्राइम इज प्रिवेंटेबल. बच सकते हैं हम साइबर अटैक से. साइबर अटैक से हम बच सकते हैं. 80% चांसेस है होने का. वी कांट अवॉइड कि नहीं हो पाएगा. देर आर चांसेस, बट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, वी कैन प्रिवेंट. इन द फिजिकल वर्ल्ड वी आर गुड टू प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ एंड आवर प्रॉपर्टी, है ना. हम अपने प्रॉपर्टी को घर में बड़ा सा लॉकर रखे हैं, उसके अंदर पैसे रखते हैं, ज्वेलरीज रखते हैं. वी आर गुड इनफ टू प्रोटेक्ट. वी आर गुड इनफ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट वी नीड टू रेप्लिकेट द सेम थिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड. हमको वही चीज़ें डिजिटल वर्ल्ड में भी करना है. प्रोटेक्शन इन द डिजिटल वर्ल्ड, उसको भी प्रोटेक्ट करना है. जैसे फिजिकल एसेट्स को आप प्रोटेक्ट करते हो, सेम वे वी हैव टू प्रोटेक्ट आर व्हाट? डिजिटल एसेट्स ऑल्सो, राइट. सो दीज आर द सर्टन पॉइंट्स आई हैव गिवन by which you can identify how whether your data or information has been compromised or not. There is chances compromise हो भी सकता है, but अगर हम follow करेंगे कुछ tips तो नहीं होगा. So always see symptoms like suppose I'm suffering from cold. तो मैं डॉक्टर को जाऊंगी, मैं जाके ऐसे बैठ गई, हेलो डॉक्टर जी आप कैसे हैं. सो डॉक्टर विल नॉट कम टू नो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, राइट. आई हैव टू टेल भाई मुझे कोल्ड है, स्नीजिंग है, कफ आ रहा है, गिव मी सम मेडिसिन. सो सिम्टम्स बताने पड़ेंगे. यू शुड रिमेंबर दिस सिम्टम्स. यू विल कम टू नो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है आपके डेटा के साथ कि नहीं हो रहा है, राइट. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स अ प्रॉब्लम. आपको एंटीवायरस नोटिफिकेशन बता रहा है, फिर भी आप इतने बिजी हो, यू आर जस्ट क्रॉसिंग इट. डिस्क स्पेस डिसअपियर अनएक्सपेक्टेडली. ठीक है, स्पेस खत्म हो गया डिस्क का.
पॉपअप सडनली अपीयर समटाइम सेलिंग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, एडवेयर आ गए, भाई ये ले लो, ये खरीद लो, ये कर लो। फाइल्स और ट्रांजैक्शन अपीयर दैट शुड नॉट बी देयर, ऐसे फाइल आ गए जो आपके पीसी में आपने तो बनाया ही नहीं है, आपके घर वालों ने भी नहीं बताया। नाउ योर कंप्यूटर इज स्क्रॉलिंग, चल ही नहीं रहा है, एक फोल्डर पे क्लिक करके आपको किचन में जाके आप चाय पी के आ गए, राइट। अनयूजुअल मैसेजेस, साउंड्स और डिस्प्ले ऑन योर मॉनिटर आर कमिंग, स्टोलन लैपटॉप, ओके, one stolen every 53 seconds, 97% never recovered, ठीक है। ये है। द माउस पॉइंटर मूव्स बाय इटसेल्फ, अपने आप माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, मैजिक नहीं हो रहा है। आपने कभी तो अपने पीसी पे एनी डेस्क इंस्टॉल किया था, यू शेयर्ड योर एनी डेस्क विद समवन, नाउ दैट पर्सन हैज गॉट इन चार्ज ऑफ योर कंप्यूटर, अब आपका डेटा ले रहा है, वही ले रहा है, ओके। द कंप्यूटर स्पॉन्टेनियसली शट डाउन और रीबूट्स, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू। दीज आर व्हाट सम पॉइंट्स विच कैन ट्रिगर, भाई तुम्हारे पीसी के साथ कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, शायद कॉम्प्रोमाइज हो गया या पीसी खराब हो गया, कुछ तो हो रहा है, बट ऑफन अनरिकॉग्नाइज और इग्नोर प्रॉब्लम। अब इतना सारा प्रॉब्लम आ रहा है, देखेंगे, करेंगे, प्रोकास्टिनेशन, करेंगे, देख लेंगे, ओके। सो आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज, राइट स्टूडेंट। आप कभी भी नेवर स्विच ऑन योर लाइक लोकेशन, आप स्विच ऑन करोगे, कैमरा, माइक, सारे परमिशन सबको मत दो। ऑन योर ऐप ऑल्सो डोंट गिव परमिशन टू ऑल द डिवाइसेस, चेक आउट द परमिशन। आज ही आप अपने मोबाइल में जाके परमिशंस में जाओगे और चेक करोगे कि किसको आपने कैमरा, माइक परमिशन दिया है, जिस ऐप को दिया है, आर द ऐप ट्रस्टवर्थी, किसी भी ऐप को ये सारा परमिशन नहीं देना है। आई होप यू ऑल हैव हर्ड, जो एलेक्सा आप अगर रूम में रखते हो तो वो एलेक्सा whatever you are like आप जो बातें करते हो वो सब कैप्चर करता है, माइक्रोफोन है ना। एंड देन नेक्स्ट डे इफ़ यू सर्च समथिंग, आपने जो बात की है उससे रिलेटेड सर्च आपको मिलते हैं। होप यू हैव हर्ड दिस, राइट? यस, यस, ओके। सो नाउ पर्सनल साइबर सिक्योरिटी टिप्स, दिस आर सर्टन टिप्स जो क्या है आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। वी आर हियर टू प्रोटेक्ट। यूज 2-factor ऑथेंटिकेशन, ऑल ऑफ यू, जस्ट आई होप आप सब CSIT के हो तो आपने ये किया रहेगा। प्लीज डू दिस ऑन योर पेरेंट्स मोबाइल ऑल्सो, 2-factor ऑथेंटिकेशन। अपडेट योर डिवाइसेस, अपडेट योर होम राउटर, थिंक बिफोर यू क्लिक, किसी भी लिंक पे ऐसे ही मत क्लिक कर देना। VPN यूज़ कर लो जब आपको चाहिए, ओके। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करो। सो दीज आर सर्टन पर्सनल साइबर सिक्योरिटी, दिस टिप्स यू कैन गिव टू एनी, आप गिफ्ट में ये दे दो, भाई ये लो टिप्स, ओके। सो दीज आर सर्टन सिक्योरिटी चेकलिस्ट। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट, यू हैव टू इंस्टॉल अ रिलायबल एंटीवायरस। कोई भी एंटीवायरस फ्री में मिल रहा है तो इंस्टॉल मत कर दो, आपको रिलायबल एंटीवायरस करना है। एनहांस योर सिक्योरिटी विथ प्रोडक्ट दैट कैन ब्लॉक अटैक एंटीवायरस कांट डिटेक्ट। सो देर आर समथिंग विच एंटीवायरस कांट डिटेक्ट, राइट। जैसे मालवेयर हो गया, एंटीवायरस नहीं, कोई सॉरी नॉट मालवेयर, सम थिंग्स आर देयर विच एंटीवायरसेस कांट डिटेक्ट, तो उसके लिए आप दूसरा कर लो, फायरवॉल इंस्टॉल कर लो। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एक्टिवेट 2-step ऑथेंटिकेशन, मैंने ऑलरेडी वो डायग्राम में सब दे दिया था। अवॉइड ओवर शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। सी, नेवर शेयर योर प्लान्स, ट्रैवल प्लान्स, पूरा लोकेशन के साथ तो बिल्कुल मत शेयर करो। आप कहीं गए हो थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हो, बट नेवर शेयर ऑल द लोकेशंस, ओके। लोकेशंस तो पूरा कभी आपको नहीं शेयर करना है। ओवर शेयरिंग इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। बैकअप योर डेटा एंड डू इट ऑफन करो बैकअप डेटा को, ठीक है। सो देन नेवर ओपन ईमेल फ्रॉम अननोन सेंडर, नेवर डाउनलोड और अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सेंडर। कीप योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेफ, सब किसी के साथ शेयर ही नहीं करना है, आपके पास ही रखो। हाँ, अगर आपको लगता है आपके फैमिली में किसी के साथ शेयर करना है देन यू कैन शेयर, अदरवाइज नेवर शेयर योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विथ एनीबडी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज व्हाट, पैटर्न ऑफ योर मोबाइल बैंकिंग, पासवर्ड फॉर मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एंड ऑल दैट। Avoid untrusted website and don't click on suspicious banner or links. Adjust the privacy and security setting in your browser. Like you may get some contents which you don't want to see, so you can set that type of setting in your browser, in your apps, right? All this thing can protect yourself, right student? Okay, hope you got to know something.
So you are the best defense. You are the best defense. ठीक है. There are technology, but technology is only a small part in cyber defense. It is going to protect yours, but वो छोटा सा पार्ट है. प्रोटेक्शन आपकी तरफ से भी होना चाहिए. इफ़ यू फॉलो ऑल द चेकलिस्ट जो मैंने बताया, आप कहीं पे क्लिक नहीं करोगे, किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, सबको बताओगे नहीं, देन हार्डली देर इज चांसेस कि आपके साथ कुछ अटैक होगा. आई एम यूजिंग सो मेनी डिजिटल डिवाइसेस, इतने सारे अकाउंट, ये वो, मेरे साथ आज तक कुछ अटैक नहीं हुआ, बिकॉज आई नो ऑल दिस थिंग्स. मुझे पता है क्या कैसे करना है. मुझे कुछ एक मैसेज भी आता है, मेल भी आता है, एक सामने वाले का कॉल भी आता है. आई थिंक कि अननोन नंबर से कॉल आते हैं, व्हाट्सअप कॉल, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्सअप कॉल. I never pick up WhatsApp call from unknown number. I never pick up video call from unknown number because I know there is deep AI going on जो मेरे आवाज़ को ले लेगा, मेरे फेस को ले लेगा, and it will do blunder with all that. Pornography video बना देगा and it will do something. So you are the best defense. I hope you are agree with this. You are the best defense, right? Okay. So technology is only a small part of cyber defense. You are the most important person. है ना, आप इम्पॉर्टेंट हो ना. येस, यू आर इम्पॉर्टेंट. योर इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, योर एसेट इज इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. सो प्रोटेक्ट योरसेल्फ. फॉर बिजनेसेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट डिफेंस इज साइबर सिक्योरिटी अवेयर एम्प्लॉयज. तो जो बिजनेसेस होते हैं ना, तो उनके लिए क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एम्प्लॉय को अवेयरनेस करो. वाई योर कॉलेज हैज केप्ट दिस वेबिनार, सो दैट यू ऑल नाउ देर आर स्टूडेंट हु आर इन फर्स्ट ईयर, दे डोंट नो, दे आर स्टूडेंट हु आर इन सेकेंड ईयर, दे डोंट नो अबाउट ऑल दिस, सो दे आर स्प्रेडिंग व्हाट, अवेयरनेस. ऐसे ही बिजनेसेस जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉय के लिए साइबर सिक्योरिटी का सेशन कंडक्ट करते हैं, ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे करो, ये कैसे करो, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज फ्रॉम टेक्नोलॉजी, राइट. ऑलवेज बी अवेयर, ऑलवेज बी ऑन योर गार्ड, राइट. Okay, and now student, this is what the important slide which I would like to discuss. Like whenever something happens, you can report, right. cyber fraud अगर होते हैं, so this is a helpline number, national helpline number है. even you can file your complaint online. this is the website cybercrime.gov.in. इफ़ यू गो टू दिस वेबसाइट, आप यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, आप देख सकते हो. यू कैन फायर कंप्लेंट ओवर देयर एंड ऑलवेज यू कैन कॉन्टैक्ट टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, राइट. आई थिंक द लास्ट पार्ट इज नॉट विजिबल ऑफ दिस स्लाइड. यू कैन ऑल्सो फाइल योर कंप्लेंट cybercrime.gov.in. that is the website. okay, I'll just show you. this is the website. okay, so I'll show you at the end, cybercrime.gov.in. make a note of this. so now guys, now the last part is what, roadmap to security. we have understood security. I want to make my career in security. so what I shall do you guys want to know this roadmap to security? Ma'am, do we have time? yes, do we have time? because this topic is little lengthier, or I'll just touch this topic. okay, so let me quickly touch this topic. so here I'll just show you this. so if you want to become a cyber security expert, there is lots of job and opportunity in cyber security. student, I'll tell you, in my college also every year 4 to 5 students go foreign for doing higher studies in cyber, and then they have lots of opportunity, lots of pay skill. तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में कैरियर बनाना है, मैं आपको फटाफट ओवरव्यू दे देती हूँ. आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से आपको जानना पड़ेगा, नेटवर्किंग के बारे में पूरा अच्छे से जानना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वर्चुअलाइजेशन इज डन, and then different networking topologies. so networking is must in this security, and then
ऑल दिस थिंग यू हैव टू डन, एंड देन थोड़ा बहुत आपको प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए, एंड यू शुड नो व्हाट क्रिप्टोग्राफी, अबाउट क्रिप्टोग्राफी. सो यू हैव इन योर सिलेबस IT एंड कंप्यूटर साइंस, यू बोथ आर हैविंग क्रिप्टोग्राफी इन योर सिलेबस. तो आप तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें वहाँ पे ही कर लोगे. सो इट्स नॉट वेरी ईजी, एंड इट्स नॉट लाइक 2 दिन का काम है साइबर सिक्योरिटी पढ़ना. यू हैव टू गिव टाइम. एक टॉपिक स्टार्ट करके आप इसको पढ़ के एंड यू कैन मेक योर कैरियर इन साइबर सिक्योरिटी. एंड गाइज, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में कैरियर बनाते हो, स्टार्टिंग पैकेज ही अलॉन्ग विद दिस ऑल दिस स्टडी यू डू 1 सर्टिफिकेशन. ठीक है, एक आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो. इंडिया के लिए मैं बात कर रही हूँ. सर्टिफिकेशन नेम इज EJPTV2, ये सर्टिफिकेशन का नाम है. ये सर्टिफिकेशन आप कर लोगे तो आराम से आपको 7 लाख का पैकेज मिल जाएगा बिगनिंग में, राइट. आपको थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आने चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट अ शॉर्ट रोड मैप टू योर साइबर सिक्योरिटी. अगर आपको साइबर सिक्योरिटी बनना है, साइबर सिक्योरिटी वी डोंट हैव ओनली साइबर सिक्योरिटी, एक बड़ा सा नाम है, उसके अंदर बहुत सारे सब डोमेन है. लाइक वी हैव एप्लीकेशन सिक्योरिटी, वी हैव क्लाउड सिक्योरिटी, वी हैव रिस्क मैनेजमेंट, वी हैव एंड पॉइंट सिक्योरिटी, वी हैव आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, डिजिटल फॉरेंसिक, क्लाउड सिक्योरिटी, ऐसे करके बहुत सारे डोमेन है. तो साइबर सिक्योरिटी में आपको एक डोमेन लेना पड़ेगा और फिर उसमें आपको एक्सपर्टीज करनी पड़ेगी. सो I just wanted to share you that if anybody interested in making career as a cyber security expert और cyber security domain में जाना है तो आप अपना कैसे start कर सकते हैं, because we have first year students also, right? Okay, so now the last questions. If you have any questions, you are welcome. Yes guys, any questions? Let me know through chat box whether the session was useful or not, and if you have any question please do ask.